Just let us wait a minute because I think other people will be joining that soon. So 1 second. Yeah. Just a minute. Let me share the link with everyone so that. Uh, okay. Cool. So yeah, everyone. Extremely sorry. Are we good to begin? Can you let me know in the chat once if everything is good and we are good to start? Extremely sorry. I think 10 minutes got wasted due to that. But yeah, should be fine. I hope you're able to hear me fine and everything is fine. So just give me a quick confirmation and we should be good to begin. Okay. Yes. No, everyone. Anything? Yes. Great. So I hope no issues are there with respect to anything. Okay. Great. So let me first quickly help you with the last class, like what exactly we did. Okay. And I've shared, I think, just if someone can confirm me, like for people who are joining from my batch, the FSDS one, if they are able to basically see the updated thing. Good. Good evening, Anand. So extremely sorry, we got a little late due to some testing I was doing with StreamYard, but yeah, should be fine. Great. So I'm beginning, everyone. In the last class, we saw that how we can create a class and how what exactly is a constructor and what exactly is actually a self. This self. So anyone has any doubt in this? Anyone who didn't understand what exactly this is? Anyone any doubt? Anything which is not clear? So let me know if anyone is there who is not able to understand anything here. We'll be helping you to clear that out. Great. So yeah, if no doubts are there, then let us start and basically continue with this only. So we saw two things basically there. Okay, that day that we can create a class like this, and we have a constructor, right, which we can create. Now inside this constructor, okay, so let's say if I'm trying to just make this thing, okay, and let's say if I make a student s1 is equals to student, then होता क्या है इसमें कि this constructor gets called automatically. ठीक है, ये अपने आप कॉल हो गया. Yes or no, everyone? Anyone has any doubt in this? Anyone has any doubt in this? कि what exactly happened here? I told you कि constructor is a magic function because of this only, ना? कि it gets called itself. I don't call it. Yes or no? Yes, no, anything? Great. So if that is clear, then we saw that, okay, how exactly? So if you remember, I told you about two things which are always part of this, I would say, my classes. The first is actually your, I would say, attributes or properties, right, everyone? And second is your methods or functions, which we can define. So let us first talk about this attribute. So if you remember in student, his name, roll number, and marks. Like these are few attributes, and study, and I would say, let's say play or maybe sleep. They are some functions. So now we in a way have to basically make sure that we are able to add these properties. Now, if I am able to add these properties here, then this kind of understanding will be very helpful tomorrow. If let's say you are on Flipkart, okay, you are on Flipkart and Flipkart wants to, let's say, create multiple things here. Flipkart wants to create, let's say, user, then that user can buy item, okay, that user can basically maybe I would say pay something. So the methods and the overall I would say property जो भी एक user की होती है, that overall we will be able to make. Is this thing clear, everyone? When I talk कि ये properties का फायदा क्या है, कि the way I'm making these properties, I hope this thing is clear to each and every one of you. ठीक है? Cool then. So let us now, if this is set, if this thing is set,
what I can do is if I will just press F1 S1 and dot, I will just see roll number here. बिकॉज रोल नंबर मैंने सेल्फ के ऊपर क्रिएट किया था. आई क्रिएटेड दिस रोल नंबर इन टॉप ऑफ दिस सेल्फ. आई सेड कि यार सेल्फ यू नीड टू हैव दिस रोल नंबर, वेयर एज दिस नेम आई डिफाइंड वेगली, लाइक दिस नेम वाज डिफाइंड हियर. ठीक है, इट्स द सेम एज इफ यू रिमेंबर दैट गुजिया वाला एग्जांपल. मैंने गुजिया पकड़ी, आई बेसिकली हेल्ड अ गुजिया एंड आई एम लाइक कि इसमें आई नीड टू ऐड दैट फिलिंग. ओके, सो हियर दैट वुड हैव बीन समथिंग लाइक दिस गुजिया. ओके, लेट्स से गुजिया 1 डॉट फिलिंग. So इस तरीके से I will be adding these things. Is it clear everyone? Yes or no? That what why exactly I need to use self? Is self के अंदर I have that object which is created. Now in that object I am adding the things which I want inside it. Anyone has any doubt in this? Anyone has any doubt in this? किसी को भी कोई भी डाउट है, कोई भी चीज क्लियर ना आ रही हो, क्लियर ना हो रही हो बिल्कुल भी? ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेट मी मेक अनदर क्लास सो दैट इट विल बी अ लॉट हेल्पफुल टू यू टू इमेजिन. पे अटेंशन. सो देखो, क्लास कार. ठीक है, क्लास कार आई एम मेकिंग एंड लेट्स से फॉर द टाइमिंग आई एम मेकिंग इट पास. ठीक है, सो होता क्या है, बाय डिफॉल्ट तो यू कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. तो अभी आपने, बिकॉज यू हैव नॉट डिफाइंड अ कंस्ट्रक्टर, वो कंस्ट्रक्टर भी बेसिकली इस तरीके से बना होता है कि इट डजंट. सो कंस्ट्रक्टर बेसिकली अभी बना ही नहीं हुआ, लाइक कंस्ट्रक्टर इज नॉट देयर, सो नथिंग इज गोना हैपन. यू विल क्रिएट दिस. ठीक है, नथिंग इज गोना हैपन. यू कैन नॉट यूज दिस C1 इवन, लाइक नथिंग इज देयर इन दिस C1, राइट? Let's say if you, when you are trying to create this, when you do this in it, ठीक है, then 1 second, print constructor called. Okay, so this is a magic method which will get called whenever you whenever you basically create an object. अब अगर आप ये ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो अपने आप कॉल होएगा. ठीक है, कोड कर देते हैं. अब यहाँ पे वी नो दैट एक एरर आना चाहिए. एरर हमने उस दिन देखा था. व्हाट द एरर इज सेइंग? एरर इज सेइंग क्या, जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है बट 1 वाज गिवन. वी नो दिस C1 गेट्स पास्ड हियर, जिसको हम सेल्फ में कैच कर लेते हैं. अब ये बाय डिफॉल्ट, क्योंकि दिस इज अ मैजिक मेथड, दिस गेट्स कॉल्ड बाय डिफॉल्ट. नाउ बिकॉज दिस गेट्स कॉल्ड बाय डिफॉल्ट, ओके, दिस गेट्स एडेड. इज इट क्लियर एवरीवन? यस और नो कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ है? तो अब ये क्योंकि एडेड हो गया यहाँ पे, ठीक है, सो नाउ आई नीड टू लेट्स से सेल्फ कलर, self dot number of wheels, okay, and self dot let's say brand color. Let me make it red. Okay, let me make number of wheels 4 and let me make brand let's say Hyundai. Okay, अब जब मैंने इसको ऐसे डिफाइन किया, देन यू कैन सी दैट एरर इज गॉन. ठीक है, C1 कार एक बन गई. एंड इफ आई डू दिस C1 स्लैश, आई हैव ऑल दीज इंस्टेंसेस और आई हैव ऑल दीज basically properties of my car. And if I do this, I'm able to get this red. Is it clear everyone? Yes or no? What exactly happened here? Anyone has any doubt in this? कि मैं properties कैसे ऐड कर पा रहा हूँ? हाँ, I'm able to add properties. ठीक है, कोई भी डाउट किसी को कहीं पे समझ ना आया हो, कोई भी चीज हो? ठीक है, ये आपका हो गया प्रॉपर्टी ऐड करने का. अब हम एक दो चीजें और देखेंगे. तो इस तरीके से तो ऐड नहीं होती प्रॉपर्टी. नाउ वी नो दिस थिंग कि इस तरीके से यू आर नॉट एबल टू ऐड योर प्रॉपर्टी. Okay everyone, so now let us move forward and see few more things like what exactly is going to happen. So when we don't need to sir, why we not passing color number of wheels? So उस पे आएंगे हम शंभू, we will come to that. So when we don't need to with the color number of wheels along with self in bracket, so we are going to come on that Anand. Okay, don't worry. So ये मैं अब चीज समझाता हूँ. देखो, pay attention everyone. यहाँ पे मैंने ये C1 बनाया. ठीक है, C1 का कलर भी रेड है. अब मैंने लेट से C2 बनाया. ठीक है, C2 एक कार बनाई मैंने. I made this C2. If I do this C2, if I basically create this C2, and अब मैं अगर C2 को कलर देखूं तो यार ये भी रेड होएगा, ये भी ये इसका ब्रांड देखूं तो दिस इज आल्सो Hyundai. सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि यार दिस इज अ प्रॉब्लम. इफ आई एम ट्राइंग टू हार्ड कोड इट, अगर आई से कि यार तुम ये रेड 4 और Hyundai वैल्यू ले लो, देन इट्स एक्चुअली अ प्रॉब्लम, राइट? दिस थिंग इज अ प्रॉब्लम. आइडली आई शुड बी आस्किंग कि भाई जब मैं बना रहा हूँ कार को तो मैं बता देना चाहिए ना यार कि यार क्या चाहिए. अब अगर मैं लेट से गुजिया बना रहा हूँ तो आई विल से ना कि यार देखो इसमें फिलिंग इसकी डाल देना, इसकी शेप थोड़ी ऐसी बना देना, साइज इसका इतना बना देना. ठीक है, और या फिर जब लेट से इंसान भगवान और लेट से व्हेन द गॉड इज इवन मेकिंग अस, ही टेल्स अस ना कि यार ठीक है इसकी इतनी हाइट होनी चाहिए, लाइक व्हाट द जीन्स आर, राइट? वो इन अ वे वो कंस्ट्रक्टर ही की पैरामीटर्स है कि भाई इसकी इतनी हाइट होनी चाहिए बेस्ड ऑन दिस थिंग, ये इसकी एथनिसिटी होनी चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए लाइक दिस. ठीक है, so you see this problem here everyone, self color, the same thing is there as well. So let's say if I make self dot name and if I make Mayank, okay, if I make it Mayank, then pay attention. When I created S1,
स्टूडेंट 1 का नेम मयंक है, चलो ठीक है. इफ आई क्रिएट अनदर स्टूडेंट, ओके, एंड इफ आई सी S2 डॉट नेम, तो ये भी मयंक है. सो आई थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम, राइट? मतलब व्हाई इज एवरीवन गेटिंग नेम मयंक? मतलब हम मुझे बता देना चाहिए ना, आई शुड टेल यार व्हाट आई वांट द नेम टू बी. यस और नो एवरीवन? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस थिंग? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस थिंग दैट आई शुड टेल दिस नेम, रोल नंबर एंड एवरीथिंग? एल्स तो सबका सेम ही होएगा ना ये. मतलब लेट अस सी S1 डॉट रोल नंबर, S2 डॉट रोल नंबर, राइट? देखो व्हाट आर द वैल्यू आई एम गेटिंग. क्या नाम था? रोल नंबर, ठीक है, माय बैड. दोनों का 1 2 3 1 2 3 है. आई होप दिस इज अ प्रॉब्लम. एवरीवन कैन सी हाउ इट्स अ प्रॉब्लम, राइट? नाउ इफ दिस इज अ प्रॉब्लम, then there should exist a solution. सॉल्यूशन बहुत इजी सा है, बिकॉज इन इट इज अ मेथड. मैं यहाँ पे नेम और एक रोल नंबर ले लेता हूँ, ठीक है. इंस्टेड ऑफ मी सेटिंग दैट, लेट मी सेट whatever you are passing. Let me set whatever you are passing. ठीक है. So I have made this change. Let me copy this and create. 1 second. Let me copy this whole. Pay attention everyone. Let me get the student 2 class here. Okay. So मैंने ये student 2 class बनाई है, या फिर student better. ठीक है. So pay attention everyone. Now what's gonna happen? If I make student better 1, or if I make this student underscore better, can I create my object like this? Can I create my object like this only? How many of you think this is gonna create an object? How many of you think this is going to create an object? Give me in the chat yes or no. Yes, no, anything in the chat, everyone. It's going to create, okay. Mehul is saying it's going to create. Everyone give me the answer. क्या होना चाहिए यहाँ पे? Will it create or not? क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? एंड आज आपके ऊप्स का आई थिंक काफी एक अच्छा पार्ट कवर हो जाएगा. यू रोड लाइक यू विल बी बेटर, लाइक देन यू विल बी एबल टू राइट कोड एज वेल. ठीक है. तो देखते हैं एवरीवन. अगेन देखो, पीपल हु आर फ्रॉम माय क्लास या पीपल हु आर इवन जॉइनिंग एनीवेयर, प्लीज बी एक्टिव इन चैट. ये लाइव सेशन करने का तभी तरीका है. लाइक आई एनीवे हैव द वीडियोस क्रिएटेड फॉर दिस व्हिच गोना कम एज पार्ट ऑफ हेलो पाइथन सीरीज. ठीक है. तो देखो एवरीवन, पे अटेंशन. एरर दे दिया इसने. ठीक है. अब ये एरर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. देखो इधर क्या हुआ. पे अटेंशन एवरीवन. ठीक है. और let me actually just copy it and then show you exactly what's going to happen so that it is useful. ठीक है. आपके नोट्स में भी आ जाएगा. देखो क्या होगा ये. अब I created an init, I created a constructor. ठीक है एवरीवन. इन दिस कंस्ट्रक्टर आई नो कि एक सेल्फ तो पास हो ही रहा है. ठीक है. वो सेल्फ तो चलो अपने आप, जो ऑब्जेक्ट मैंने ये S1 बनाया, SB1 बनाया, ये मेरा सेल्फ में पास हो जाएगा. मेक सेंस. ठीक है. अब मैंने इसके अलावा यहाँ पे नेम एंड रोल नंबर और मांगा था. सो आई आस्क्ड फॉर नेम एंड रोल नंबर एज वेल, बट यू हैव नॉट प्रोवाइडेड दैट. इफ यू हैव नॉट प्रोवाइडेड दैट, then that's an issue ना. How can you define exactly a student without name? Student कैसे define करोगे? How are you gonna define it? ठीक है. So there are two ways to solve that. The best way or the real way is कि if you are creating that, you have to provide this name and roll number. So let's say Mayank. Okay, Mayank is the name, and let's say roll number is 1. And now if I show you SB1 dot roll number, ठीक है, and SB1 dot name, then I'm able to get it. In a similar way, if I make, let's say, SB2 student underscore better, ठीक है, this time let's say I provide Anand and let's say 2, ठीक है, it's gonna again add it SB2 dot roll number, SB2 dot name. Many people were saying कि ये roll number और roll number same नहीं है. नहीं, ये कोई condition नहीं होती. This doesn't matter in a way. Sambhu, I hope this is clear as well. Everyone, I hope this thing is clear. Yes or no? Anyone has any doubt now in this? And this I think is a very good and the perfect way to create things, right? Matlab, this is as good as it gets. Now you can actually create. So, for example, I can go to my Flipkart. When you log in, when you sign up here, right? When you sign up, actually this is the reason it asks you to sign up. It is asking for your mobile number. So initially ये एक placeholder से आपका mobile number set कर देगा वहाँ पे. Then it will ask for your name, address, email ID, everything, and it is gonna set and create a user for you.
Are you able to connect this that how exactly is it happening? मतलब बेसिक्स ही है, एवरीथिंग इज बेसिक ओनली. वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते रहती है व्हेन यू वर्क ऑन इट. बट आप रोल नंबर ऐड करिए. इफ यू आर एबल टू ऐड, लेट्स से इफ आई एम एडिंग अ मोबाइल नंबर, पहले ये मोबाइल नंबर सेट कर देगा, देन इट्स गोना आस्क मी फॉर नेम एंड एवरीथिंग. एक ओटीपी से पहले ये मे बी चेक कर लेगा. ठीक है. एंड वी कैन ऑल्सो एक्चुअली राइट एवरीथिंग लाइक दिस. लाइक यूजिंग oops यू कैन एक्चुअली डू एवरीथिंग लाइक दिस. एंड योर कोड इज अ लॉट रिप्रोड्यूसेबल. मतलब आप इसको बिल्कुल रिप्रोड्यूस कर सकते हो. आप 1000 बंदे डाल सकते हो ऐसे. यू डोंट हैव टू वरी ऑन एनीथिंग. इज इट क्लियर एवरीवन कि यहाँ पे क्या हो रहा है? यस और नो? And for that matter, any website you go, you know the same thing is actually in a way happening. ठीक है. Let's go to Amazon. Let's say if I go to cart, if I go to here, this, and let's so अब ये मोबाइल नंबर और ईमेल मांगा है. ठीक है. So it is now asking for mobile number and email. Right everyone? So I hope this is clear. ठीक है. तो अंडरस्टैंडिंग वही है. देखो बस वो बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया. ठीक है. उस चीज को बस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया बिकॉज ऑफ कोर्स देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू हैव एंड दैट्स अ प्रोडक्शन रेडी कोड. प्रोडक्शन में वो कोड चल रहा है तो उस चीज का है. बट फंडा यही है. बैकएंड पे यही हो रहा है जहां पे जस्ट वी आर एडिंग दिस थिंग. ठीक है. इस तरीके से क्लास किसी ने बनाई है एंड एवरीथिंग इज गेटिंग यूज्ड हियर. ठीक है. कूल है. सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर नाउ. एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस बिफोर आई मूव फॉरवर्ड? एनीवन एनीथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर इस चीज में कि हमने प्रॉपर्टीज कैसे ऐड करी हैं, क्या एग्जैक्टली होता है? टेल मी इन द चैट क्विकली. अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं फिर हम. क्लियर या फिर वो लिख दो, थम्स अप दे दो, या फिर जो भी इमोजीज देयर ना. कूल. ठीक है. चलो. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. ओके. क्लियर. Mayank, can we remove print function now? हाँ, we can remove that. Though I like to keep it, but we can remove that. It is not required. ठीक है. So this just I showed you so that you can see that exactly what is happening here. ठीक है. But yeah, we can remove it, and I hope this thing is clear. मनोज देखो, पे अटेंशन. यहाँ पे ना इट डजेंट मैटर इफ इट इज रोल. ये रोल नंबर सिर्फ हमारे लिए है. मैं इसको आर्ग्यूमेंट 2 और इसको आर्ग्यूमेंट 1 कर देता हूँ. ठीक है. एंड इसको मैं आर्ग्यूमेंट 2 और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट 1 कर देता हूँ. इट डजेंट मैटर. इट इज जस्ट अ प्लेस होल्डर. ये जस्ट प्लेस होल्डर है. इट इज नॉट आई वुड से इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू कीप द नेम सेम ताकि आप इसको आई वुड से यूज कर सको. आप इसको डायरेक्टली यूज कर सको. लेकिन इट डजेंट मैटर. यू कैन मेक इट इवन आर्ग्यूमेंट 1 एंड आर्ग्यूमेंट 2 एज वेल. आपको जो आर्ग्यूमेंट 1 में मिल रहा है वो आपको कहाँ डालना है. अब क्या होता है नॉर्मली ना हम इसको सेम नेम से रख देते हैं, नेम एंड आई वुड से रोल नंबर, ताकि आई कैन यूज इट हियर डायरेक्टली. सो माय कोड इज अ लॉट क्लियर कि यार हाँ ठीक है, नेम में नेम जाएगा, रोल नंबर में रोल नंबर. अगर मैं यहीं पे arg1 या arg2 लेता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब arg1 का जाना है, arg2 का जाना है. फिर हम नीचे जाके देखते हैं अच्छा पहले नेम भेज रहे हैं तो arg1 में नेम जाएगा तो arg1 को यहाँ पे arg1 डालना चाहिए. तो इससे बेटर ये है ना कि यार यहाँ पे नेम और रोल नंबर डिफाइन कर दो. इज इट क्लियर एवरीवन? यस और नो? आई होप दिस थिंग इज क्लियर. कोई डाउट किसी को यहाँ पे? Anyone has any doubt in this? ठीक है. हो गया मनोज. आई होप दिस इज क्लियर एज वेल. तो बस ये गुड प्रैक्टिस होती है. दिस इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस कि ना तुम इसको नेम और रोल नंबर ऐसे कर दो. ठीक है. हाय सेड. थैंक यू सेड इफ यू आर बिग फैन. ठीक है. चलो कूल है. तो हम भी इसी तरीके से करते हैं. नाउ लेट मी जस्ट रिमूव ऑल दिस थिंग्स. कूल. चलो बहुत बढ़िया. अब ये चीज हो गई. नाउ एवरीवन लेट अस सी कि इस तरीके से हम मेथड्स कैसे बना सकते हैं. ठीक है. हाउ वी कैन मेक मेथड्स. तो ये हमने यहाँ पे बना लिया. अच्छा एक चीज और है. जस्ट द वे और फंक्शन वर्क्स. अगर आप इसमें लेट से 1 2 3 डाल देते हो या फिर आप यहाँ पे एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का कंसेप्ट पढ़ा है ना हमने. डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट. हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड द कंसेप्ट ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट? कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं देता, इसको मैं 1 2 3 कर देता हूँ तो क्या होएगा? इफ आई एम ट्राइंग टू मेक, सो लेट्स से मैंने इसको डिफाइन किया. इफ आई एम ट्राइंग टू मेक अ स्टूडेंट बेटर. ठीक है. विद लेट्स से मयंक एंड 1. और अगर मैं इसका रोल नंबर देखता हूं तो ये 1 होने वाला है. राइट. बट अगर मैं एक स्टूडेंट बनाता हूं, इफ आई मेक अ स्टूडेंट अंडरस्कोर बेटर विद लेट्स से आनंद एंड आई डोंट प्रोवाइड द रोल नंबर, तो वो बाय डिफॉल्ट वही ले लेगा जो ऊपर मैंने यहाँ पे डाल रखा है. इसको 1 2 3 ले लेगा.
ठीक है, तो ये जो बेसिक कंसेप्ट होता है ना मेथड फंक्शन का, ये फंक्शन का कंसेप्ट है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, तो वो उसी तरीके से चलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। सो यू कैन इवन क्रिएट लाइक दिस टू मेक योर कोड ओवरऑल अ लॉट इजी कि यार ठीक है, अगर बंदे ने कुछ नहीं दिया तो हम ये यूज कर लेंगे, दे दिया तो ठीक है, लेकिन अगर आप नेम नहीं दोगे तो दिक्कत है, नेम में ये इशू दे देगा। इन इट मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, तो ये रिक्वायर्ड है और ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है नेम। ये आपको एरर अभी भी रोल नंबर के लिए नहीं दे रहा, देखो आपका एरर चेंज हो गया, ये कह रहा है भाई नेम तो मुझे चाहिए, नेम नहीं दोगे तो मैं नहीं बना सकता, रोल नंबर चलो मैं अज्यूम कर लूं, ये होता है यार चलो नेम रोल नंबर नहीं है, चलो यार जीरो दे दो उसको थोड़े टाइम के लिए, ठीक है हम फिक्स कर देंगे, लेकिन नेम तो चाहिए ना भाई। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करनी। क्लियर एवरीवन? आई होप दिस थिंग इज क्लियर एज वेल। अब हम पढ़ते हैं मेथड्स कि मेथड्स कैसे बनाते हैं। अब भाई हमारे स्टूडेंट को अगर पढ़ाना है, अगर हमारे कस्टमर को बोलना है कि तुम ये चीज खरीदो, ठीक है, कस्टमर को बाय टाइप्स का बिहेवियर देना है यहाँ पे, ठीक है, या फिर इसको ये लेट्स से कस्टमर को अब हमें बाय वाला बिहेवियर देना है कि भाई ये बोर्ड पे जाके ये ऐसे इसको देख सके। अब ये बाय जब आप करते हो या ऐड टू कार्ट करते हो तो ये एक मेथड ही तो है, ये एक राइट, ये एक मेथड ही तो है जिसको आप यूज कर रहे हो, ये ऐड टू कार्ट करना, दिस इज अ मेथड ओनली। अब ये आप ऐड टू कार्ट करते हो तो पीछे से कुछ कॉल होता है जो आपकी एक कार्ड बना के रखते हो और इसमें ऐड कर देता है, तो कार्ट एक अलग क्लास है, आपकी यूजर एक अलग क्लास है, ये दोनों ज्वाइन होके एक कार्ड बना देती है। तो अब आपको अगर आप ऐसा कुछ देना है तो लेट्स से प्रिंट आई एम स्टडिंग, ठीक है, तो ये स्टडी का आपका मेथड बन जाएगा। क्लियर एवरीवन? स्टडी का मेथड। चलो अच्छा, अब एक चीज बताओ मुझे, ठीक है, फर्स्ट तो टेल मी लेट्स से इफ आई अगेन जस्ट डिलीट दिस थिंग, ठीक है, चलो मैंने इसको दोबारा बना दिया। अब अगर आप देखोगे sp1 तो यहाँ पे स्टडी भी आ गया, दिस इज अ फंक्शन। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू सी दैट दिस इज अ फंक्शन? अब ये एक फंक्शन है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, यू पिकअप अ स्टूडेंट और उसको बोलते हो ना यार आप पढ़ने के लिए, आप ऐसे होते हो ना कि भाई तू पढ़ ले, यू एज अ स्टूडेंट यू स्टडी, यस और नो? अब व्हेन आई विल रन इट, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस इज गोना वर्क, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस इज नॉट गोना वर्क? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस इज गोना वर्क, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस इज नॉट गोना वर्क? ये बताओ जल्दी से। Mehul is saying not work. Everyone else? चलो देखते हैं, ठीक है। इसमें इशू आ गया, टेक जीरो पोजिशन आर्ग्यूमेंट बट वन वॉज गिवन। हमने एरर देखा है कहीं ना कहीं, हमने एरर देखा है, यस और नो? देखो अगेन, आई नो कि आप लोगों ने बहुत जगह शायद ऊप्स कहीं से पढ़ा हो एंड वहां पे उन्होंने बोल दिया हो यार हर मेथड में सेल्फ आता है, पक्का हुआ होगा ऐसा, ठीक है, समवन वुड हैव डन दैट, बट आई डोंट वांट टू डू दैट। आई वांट टू मेक श्योर कि आप समझो हमने एरर कहां देखा था एंड इसका फिक्स क्या था। आई थिंक हमने सेम एरर कंस्ट्रक्टर में देखा था, सेम एरर वी सॉ इन कंस्ट्रक्टर एंड हमें इसका फिक्स पता है। ये सेम चीज कह रहा है कि भाई ये sp1 है ना, ये कह रहा है कि यार तुम मुझे बोल रहे हो पढ़ने के लिए और मेरे को ही नहीं भेज रहे, ठीक है, मतलब मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा, वो कहीं ना कहीं बना हुआ है। अच्छा मैं ना आपको एक और चीज दिखाता हूँ, लेट मी जस्ट शो यू दिस वन मोर बेटर वे, ठीक है, तो पे अटेंशन एवरीवन। क्या होता है, ये मैंने बढ़िया सा टूल होता है पाइथन ट्यूटर, पाइथन ट्यूटर। सो देखो लेट से मैंने ये एक क्लास बना दी, ठीक है, तो कोड वगैरह यहाँ पे सेम है सब, कोई इशू नहीं, मैं इसको वो कर देता हूँ लाइट मोड, ठीक है, इसको सो लेट मी रिफ्रेश इट, हाँ ठीक है। तो मैंने सेम चीज करी यहाँ पे, स्टूडेंट अंडरस्कोर बेटर, ठीक है, लेट्स से मयंक, सो सेम कोड है, नथिंग चेंजिंग, ठीक है, बट मैं आपको रन करके दिखाता हूँ इसमें होता क्या है। देखो पे अटेंशन एवरीवन, देखो जैसी मैंने ये करी ना, एक तो ये पूरी की पूरी क्लास बन गई जिसके अंदर एक ये इनिट मेथड है और एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है रोल नंबर 1 2 3 और एक ये फंक्शन है, ठीक है, ये तो सीधा सीधा बन गया। अब जब मैं ये SB1 बनाऊंगा ना, व्हेन आई एम गोना क्लिक नेक्स्ट, तो आपको ये दिख रहा है एक SB1 बना है, स्टूडेंट बेटा का एक इंस्टेंस बना है जिसका नेम मयंक है और रोल नंबर 1 है। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू सी दिस? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू सी दिस हियर? समझ आया इससे हो क्या रहा है मेमोरी के अंदर? हाउ मेनी ऑफ यू एबल टू अंडरस्टैंड कि मेमोरी के अंदर क्या हो रहा है इससे? पहले आपने एक ढांचा बनाया, तो ये ग्लोबल फ्रेम में एक स्टूडेंट बेटर का क्लास बना, और अब आपने बोला कि भाई इस क्लास का एक
इनिट करके आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया जो स्टूडेंट बेटर का इंस्टेंस बन गया, जो SB1 है. हाउ मेनी ऑफ यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस एग्जैक्टली? Able to see? Yes or no? किसी को कोई दिक्कत आ रही है समझने में? Pretty straightforward, I think. Rather a lot better, right? ठीक है, किस तरीके से ये बन रहा है ना? चलो, तो यहाँ पे इसका इंस्टेंस बनता है. ठीक है, अब हम बैंक जाते हैं. अब हो क्या रहा है कि SB1 वही चीज है यार. देखो, स्टडी करने के लिए तुम मुझे कह रहे हो और तुम मुझको ही नहीं भेज रहे भाई. यहाँ पे एक सेल्फ डाल दो. एंड नाउ जब आप बनाओगे, एवरी टाइम यू मेक चेंजेस टू योर क्लास, रीडिफाइन योर क्लास एंड देन रीडिफाइन योर ऑब्जेक्ट. अब जब आप कह रहे हो, ये कहेगा ठीक है, नाउ आई एम स्टडिंग, बिकॉज आपने ये सेल्फ डाल दिया इसके अंदर. ठीक है, देखो सेल्फ का, हम इसे सेल्फ क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर लेट्स से मैं एक स्टूडेंट हूं, ठीक है, मैंने यहाँ पे मयंक और मेरा रोल नंबर 1 ही डाला है. Why buffer? Everyone is, I hope it's fine, or is it buffering? Is it fine or is it buffering? यदि एयरटेल हर दिन रात को कैसे फट सकता है? Is it fine now? Because speed तो सही आ रही है. Like I have changed this today, so that should be fine. Speed is overall good only. Even I think I will have to go live via, not via YouTube, by something else. But anyways, is it fine now? Now fine. ठीक है, cool. तो चलो जल्दी से समझते हैं. ठीक है, great. So अब लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि ये सेल्फ का यूज क्या होता है. सेल्फ एक्चुअली हेल्प्स टू कनेक्ट एवरीथिंग इनसाइड योर क्लास. ठीक है, तो अगर आपको कोई मेथड कॉल करना है तो आपको सेल्फ चाहिए होगा. ठीक है, इन अ सिमिलर वे इफ यू वांट टू एक्सेस यहाँ इसका नेम. ठीक है, सो लेट्स से माय नेम इज, आप ये बिना सेल्फ के नहीं यूज कर सकते. यू कैन नॉट एक्सेस इट विदाउट सेल्फ. दैट्स अ प्रॉब्लम. यू नीड सेल्फ टू एक्सेस दिस नेम वेरिएबल, राइट एवरीवन? सो देखो, ये सेल्फ डॉट नेम है, ये कनेक्शन करने के हेल्प आता है कि भाई हाउ इफ यू हैव टू कनेक्ट दीज थिंग्स, कि यहाँ पे नेम आपने डिफाइन किया था, तो ये नेम आपको अगर यहाँ यूज करना है. सो दिस इज वेयर सेल्फ इज यूज्ड. इज इट क्लियर एवरीवन? यस और नो? इज दिस थिंग क्लियर? क्लियर हो गया ये अच्छे से कि ये क्या एग्जैक्टली काम आता है ना? तो ये आपको इसलिए चाहिए ही, मतलब यू नीड दिस थिंग so that you can, I would say, see this particular thing. Clear everyone? Cool. हाँ, Anand, yes, def study is actually a method. It's actually a method and it is inside the class. तो ये एक स्टूडेंट की प्रॉपर्टी है. स्टूडेंट बेटर की प्रॉपर्टी मेरी यही है कि ये पढ़ सकता है. इन अ सिमिलर वे आई कैन मेक डेफ स्लीप एज वेल. अब इसमें मुझे सेल्फ डालना पड़ेगा एंड आई कैन प्रिंट दिस एज वेल. प्रिंट आई एम स्लीपिंग. तो देखो, अब यहाँ पे SB1 किया. अब देखो SB1 के अंदर क्या क्या है. नेम, रोल नंबर, स्लीप एंड स्टडी. तो अब ये स्लीप भी कर सकता है. क्लियर? इज इट क्लियर? यस और नो? इज दिस थिंग क्लियर एवरीवन? यस और नो? ठीक है, चलो. इसी तरीके से आई कैन मेक SB2 एज वेल. आई कैन मेक SB2 एज वेल. ठीक है, SB2. So let's say Anand only 2 and I can just use SB2 dot roll number. ठीक है, अगेन SB2 के अंदर भी सारी चीजें होंगी, बट इसका नेम और रोल नंबर, इसका नेम अलग होएगा. So these SB1 and SB2, they are known as instance variable of my class because they have different values of instances. Yes or no everyone? I hope this is clear. So I will write this down. SB1
and SB2, they are instance variable. ठीक है, क्लियर एवरीवन? आनंद देखो, इंस्टेंस होता है, इंस्टेंस वेरिएबल तो इज अ डिफरेंट थिंग। इंस्टेंस होता है कि ये जो आपने ये जो वैल्यूज ये बनाई है, रोल नंबर एंड नेम, सो फॉर एग्जांपल SB2 डॉट, यू विल सी दिस इज कमिंग एज इंस्टेंस एंड दिस इज कमिंग एज फंक्शन। ठीक है, तो इंस्टेंस है जो प्रॉपर्टी है, जैसे नेम और रोल नंबर ये आपकी प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल जब हमने यहाँ पे देख रहे थे हम, दिस इज बेसिकली ओवरऑल योर एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टी, और ये इनका मेथड या फंक्शन है। स्टडी, प्ले, स्लीप, दिस इज द फंक्शन। ठीक है, इसको मैंने कल बोला था कि हम इसको मेथड बोलते हैं वैसे, दिस इज ऑलवेज नोन एज मेथड्स, ताकि इसको हम अलग रख सकें। एंड दीज आर नोन एज एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज और इंस्टेंस। ठीक है, नाउ SB1 और SB2 आर इंस्टेंस वेरिएबल। सो व्हाट डू आई मीन बाय इंस्टेंस वेरिएबल? इनकी वैल्यूज इंस्टेंस की अलग है। SB1 का जो नेम इंस्टेंस है और SB2 का जो नेम इंस्टेंस है वो अलग है, उसकी वैल्यू आर डिफरेंट, राइट? SB1 डॉट नेम, सो पे अटेंशन, दिस इज डिफरेंट। Is it clear now everyone? Yes or no? How they are known as instance variable and everything? ठीक है, चलो। Then let us move forward and let us make a little bit better of our class. ठीक है, थोड़ा सा यूजफुल क्लास बनाते हैं। Self dot let me take math number, ठीक है, and let me do self dot let's say science number। ठीक है, तो इसमें मैं मैथ और साइंस के नंबर और मंगवा लेता हूँ। सो लेट मी ऐड दिस मैथ एंड साइंस। ठीक है, और इसको यहाँ पे रहने देते हैं, मैथ्स और साइंस हो गया। अब एक काम करते हैं, डेफ एवरेज कर देते हैं। ठीक है, इसमें सेल्फ चाहिए होगा हमें, और मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा। पहले मैं एवरेज कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, एवरेज इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट मैथ नंबर, ठीक है, प्लस सेल्फ डॉट साइंस नंबर। तो मैथ्स और साइंस के जो नंबर आए उनको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। मेक सेंस एवरीवन? यस और नो? सो मैंने बस नंबर्स ऐड किए हैं एंड आई हैव डिवाइडेड देम बाय 2। इज इट क्लियर? यस और नो? इज दिस थिंग क्लियर? सिंपल, बस मैंने थोड़ी सी क्लास अपनी हल्की सी बेटर करी है। यहाँ पे मैंने 2 नंबर्स ऐड किए एंड आई हैव मेड श्योर दैट आई एम कैलकुलेटिंग द एवरेज। चलो, तो SB1 बनाते हैं, एक पहला इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं। लेट से ये बहुत पढ़ाकू बच्चा है, मतलब ही इज अ वेरी पढ़ाकू बच्चा। ठीक है, तो इसका नाम कर देते हैं पढ़ाकू। ठीक है, पढ़ाकू जिसके मैथ्स में आए 90, 95, साइंस में आए 90, और जिसका रोल नंबर भी 1 है। ठीक है, चलो, आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कैन गेस कि इसकी क्या वैल्यूज आएगी। यस और नो? ठीक है, इसी तरीके से मैं इसका एवरेज भी निकाल सकता हूँ, SB1 डॉट एवरेज। सो अच्छा, ये मेरे को प्रिंट करना पड़ेगा यहाँ पे, प्रिंट एवरेज। इसके 92.5 आए हैं, लेकिन एक और बंदा बनाते हैं, मैं स्टूडेंट अंडरस्कोर बेटर, और इसकी ये बड़ा चालू। ठीक है, तो इसके नंबर तो भाई ज्यादा नहीं आते, इसके नंबर आ रखे हैं यार, लेट से 70 आ रखे हैं एंड इसके 80 नंबर आ रखे हैं। ठीक है, और इसका रोल नंबर 2 है। अब SB2 डॉट एवरेज करूंगा मैं, तो देखो क्या आ रहा है, 75। अच्छा, मैंने ये एवरेज किया, मैंने सेल्फ भेजा नहीं है, लेकिन सेल्फ इसको मिल तो जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? यस और नो? इज दिस थिंग क्लियर? Anything, anyone has any doubt in this code? What I have written in front of you? Anyone has any doubt in this code? ठीक है, गुड टू मूव फॉरवर्ड। कोई डाउट किसी को? ठीक है, बढ़िया। चलो, अब ना एक प्रॉब्लम देखते हैं। नाउ लेट अस सी वन प्रॉब्लम, ठीक है, जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अब यार ये बंदा चालू है, ठीक है, लेट से यार 75 वाले को ना, मतलब जो फर्स्ट आता है ना उसको कुछ अवार्ड अवार्ड मिलता है, एंड ये है चालू। ठीक है, इसका नाम भी चालू है। फॉर इंग्लिश स्पीकिंग पीपल इट इज कनिंग, राइट? ही इज अ कनिंग पर्सन। तो ये क्या करता है यार, इसने देखा कि भाई एक काम करता हूँ, मैं SB1 देता हूँ और ना यार मैं इसके नंबर कम कर देता हूँ, लेट मी मेक इट 40। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस इज गोना वर्क? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस इज गोना वर्क?
Mehul didn't understood your question कि def के arguments interchangeably मतलब do like this where he is changing the maths mark. Should it work or not? ये कि एक्सेस कर रहा है मैथ वर्क और कह रहा है यार इसके चेंज कर दो. लेट अस चलो अब एवरेज निकालते हैं. ओके ओ भाई गिर गए यार. पढ़ाकू बंदे के यार 65 आ गए राइट. चालू बंदे ने मतलब नंबर चेंज करे और नंबर चेंज हो गए. अब यार ये दिक्कत नहीं है मतलब ये क्या कह रहे हैं पता है ना वे इसका मतलब क्या है. क्या लेट से मैंने अमेजोन में अकाउंट बनाया ठीक है कल को यार आपने मेरा नंबर चेंज कर दिया. एनीवन इज एबल टू चेंज द एड्रेस. एनीवन इज एबल टू सी कि अमेजोन क्या क्या स्टोर कर रहा है. भाई देखो एक चीज समझो. पे अटेंशन एवरीवन. अगर जब मैंने ये SB1 डॉट दबाया तो ये चीजें आ रही है. अब अगर यार ये चीजें आ रही तो मुझे सब पता लग रहा है कि यार अमेजोन क्या स्टोर कर रहा है. ठीक है कल को ये तो मेरे नंबर देख सकता है कि यार मेरे कितने नंबर है साइंस में. ठीक है फिर इसको चेंज भी कर सकता है. इसको भी 60 कर दिया. तो जहां पे जिस बंदे की जो परसेंटेज 92.5 थी अब वो परसेंटेज गिर के रह गई 50 ओनली. तो ये दिक्कत है नहीं है. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस इज अ दिक्कत. भाई इसका मतलब क्या है कल को अब आप सबके पास एक बैंक की ऐप है ठीक है. कल को यार कोई भी जाके आपका जो अकाउंट बैलेंस है लेट्स से आपका 2 लाख रुपए है कल को कोई भी जाके उसको 2,000 कर देगा. समवन विल जस्ट चेंज दैट अकाउंट बैलेंस फ्रॉम 2 लाख टू 2,000. डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम. भाई यही तो हो रहा है ना यहाँ पे. इफ समवन गेट्स होल्ड ऑफ दैट कोड ठीक है एंड आपका कोड इतना ज्यादा वैसे लिखा हुआ है तो कोई भी इसमें चेंज कर देगा. राइट एवरीवन यस और नो है ना. तो शुड वी बी एबल टू फिक्स इट. शुड वी बी एबल टू फिक्स इट यस और नो. फिक्स करें. लेट अस फिक्स दिस एवरीवन. चलो सो ना अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना उसे हम कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स. ठीक है देखो एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं. पे अटेंशन. एक्सेस मिल पा रहा है आपको वेरिएबल्स का. यू आर एबल टू एक्सेस दीस मैथ्स नंबर्स. एक्सेस मॉडिफायर्स ठीक है यूज्ड टू मॉडिफाई द एक्सेस ओके ऑफ आर आई वुड से एट्रीब्यूट्स. ठीक है पहले एट्रीब्यूट्स के लिए देखते हैं. एट्रीब्यूट्स ठीक है चलो. तो अब क्या कर सकते हैं हम. हाउ वी कैन डू इज ठीक है हम ना इसको एक एक्सेस मॉडिफायर होता है यार हम ना इनको प्राइवेट बना सकते हैं. देखो ये मैंने प्राइवेट बना दिया ठीक है. एक डबल स्कोर ऐड करने से ना ये प्राइवेट बन जाता है. अब प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि क्लास को तो पता है कि अवेलेबल है. क्लास को ये पता है कि अवेलेबल है बट बाहर किसी को नहीं पता. इट जस्ट एज लाइक समथिंग लेट्स से जो हमारी लाइफ में प्राइवेट है हमें तो पता है कि क्या है लेकिन बाहर किसी को नहीं पता. जस्ट दैट इज द अंडरस्टैंडिंग. ठीक है तो मुझे पता है कि वो क्या है. ठीक है इस सेल्फ को पता है कि वो क्या है लेकिन बाहर किसी को नहीं पता. एंड द सेकेंड यू मेक इट प्राइवेट तो आपको हर जगह ये भी प्राइवेट कर देना होता है. एवरीवेयर यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू दिस प्राइवेट एज वेल. तो आप इसको ऐसे ही यूज कर पाओगे. इज इट क्लियर एवरीवन यस और नो. इज इट क्लियर. एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस. अब देखो एक चीज करते हैं. ये बना दिया मैंने. अब मैं बनाता हूं. पढ़ाकू के नंबर हो गए. सबसे पहले तो जब मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा यही एरर आ जाएगा. स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट मैथ नंबर. ये कह रहे हैं भाई मैथ नंबर है ही नहीं मेरे पास. अच्छा जी एक काम करते हैं SB1 नोट करते हैं. ओए मैथ नंबर तो उड़ेगा यहां से क्योंकि मैंने इनको प्राइवेट बना दिया ना. अब ये बाहर से एक्सेस नहीं हो सकते. नाउ यू कैन नॉट एक्सेस देम फ्रॉम आउटसाइड. ठीक है पहले जहां मैं इनको एक्सेस कर पा रहा था आई वाज एबल टू सी देम आफ्टर प्रोवाइडिंग टाइम. नाउ आई कैन नॉट डू दैट. इज इट क्लियर नाउ यस और नो. इज इट क्लियर नाउ एवरीवन. गुंजन एक बार बताओ अब क्लियर हुआ नहीं हुआ कि ये प्राइवेट होने से क्या हुआ. एंड एवरीवन एल्स एज वेल जस्ट लेट मी नो. क्लियर है ठीक है तो बढ़िया भाई. अब अगर एक्सेस ही नहीं हो पाएंगे तो SB1 डॉट ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा. ये कह रहा है मैथ नंबर है ही नहीं मेरे पास.
क्या चेंज कर रहे हो तुम? मैथ नंबर है ही नहीं मेरे पास, ठीक है। तो एवरेज 92.5 रही। अब ये पड़ा चालू वाले के भी 75 रहे। अब चालू वाला कह रहा है मुझे तो ये चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब एक चीज ध्यान देना एवरीवन, ठीक है, इट्स काइंड बी लिटिल बिट ट्रिकी। हम ना ये वेरिएबल्स बाहर से भी डिसाइड कर सकते हैं, हम ये वेरिएबल बाहर से भी डिसाइड कर सकते हैं। सर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैंने ये रन करी sb1 डॉट मैथ नंबर, मैंने रन किया तो sb1 डॉट मैथ नंबर तो आ गया, sb1 डॉट मैथ नंबर आ गया यहाँ पे, एंड इट इज 40, ठीक है, इट इज 40। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है इन दिस थिंग? इज एनीवन हैज एनी डाउट कि मैंने इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया sb1 डॉट मैथ नंबर, एंड ये इट गेट्स डिफाइंड आउटसाइड। यहाँ पे एनीवन हैज एनी डाउट, एनीथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर? जैसे मैं यहाँ पे अंदर कर पा रहा था भाई, देखो मेरे पास सेल्फ डॉट में ये कर रहा था, सेल्फ और sb1 सेम है इन अ वे, ठीक है। जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो मैं sb1 डॉट बाहर भी ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, sb1 डॉट मैथ नंबर मैंने डिफाइन कर दिया बाहर। एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस कि ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ? एनीवन हु इज नॉट क्लियर विद व्हाट हैपेंड हियर? ठीक है, कूल देन। नाउ लेट मी फाइंड एवरेज, ठीक है, एवरेज फाइंड करते हैं। इट इज स्टिल 92.5 because my average is using this private variable, it is not using the variable which you initialized here, math number। वो एक प्राइवेट वेरिएबल जो अंदर डिफाइंड है वो यूज कर रहा है। इज इट क्लियर एवरीवन व्हाट एग्जैक्टली इज इट यूजिंग? इट इज यूजिंग द प्राइवेट वेरिएबल व्हिच इज डिफाइंड इनसाइड। ओके, आई होप दैट इज क्लियर एवरीवन, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस? भाई देखो मेरा प्राइवेट वाला जो बनता है ना वो अलग बनता है, ठीक है, जो मेरा प्राइवेट वाला बनता है वो अलग बनता है वेरिएबल। एज एन एग्जांपल एक काम करते हैं, जल्दी से इसमें पाइथन ट्यूटोरियल में देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बना, पे अटेंशन एवरीवन, क्या होएगा देखो, एंड प्रिंट एंड, यहाँ पे ध्यान देना क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्लास का ढांचा बनाया सारा, ठीक है। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा दिस ऑल गेट्स क्रिएटेड, ओके, ऑल दिस इज गेटिंग क्रिएटेड। नाउ मैंने डू नेक्स्ट, एक मेरा sb1 बना, इसके पास नेम पढ़ाकू मैथ 95 साइंस 90 रोल नंबर 1, ठीक है। ये स्टूडेंट बेटर का एक इंस्टेंस बना है, मेरा स्टूडेंट बेटर का एक इंस्टेंस बन गया यहाँ पे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। नाउ जब मैंने नेक्स्ट किया, जब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया, ये देखो अभी एक एक करके बन रहा है, ये इंस्टेंस बना था, ठीक है। ये इनिट कॉल हुआ था यहाँ पे, अभी तक इनिट कॉल हुआ, तो देखो अभी ये क्या बन रहा है, स्टूडेंट बेटे का जो इंस्टेंस बना है, रोल नंबर आ गया उसमें। यहाँ पे मेरा कर्सर ये देखो, रेड लाइन है जो एग्जीक्यूट होगी और ग्रीन लाइन है जो एग्जीक्यूट हो चुकी। तो रेड लाइन अब कह रही है अब इसका नेम सेट कर देते हैं। अब ये कह रहा है कि यार इसका ना ये मैथ नंबर सेट कर देते हैं जो ये नंबर्स हैं, और अब ये साइंस नंबर सेट कर देता है। तो ये इसने मैथ और साइंस के नंबर सेट कर दिए 90 और 95, एंड इट बेसिकली केम आउट, ठीक है। सो पे अटेंशन एवरीवन व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये आपके नंबर सेट हो गए सारे। अब जब मैं sb1 डॉट मैथ नंबर सेट कर रहा हूं तो पे अटेंशन अब क्या होएगा, ठीक है, पे अटेंशन अब क्या होएगा। डू यू थिंक द ऊपर वाला मैथ नंबर चेंजिंग? डू यू सी दिस 95 चेंजिंग एवरीवन, यस और नो? डू यू सी दिस 91 changing? How many of you are able to see this or learn this? 95 चेंज नहीं हुआ ना? 95 नहीं हुआ चेंज, राइट और रॉन्ग? नहीं हुआ। तो अगर जब मैं जाके, अब जब मैं ये एवरेज निकालता हूं तो यहाँ पे मैं ये 95 40 तो यूज कर नहीं रहा, मैं तो ये वाला यूज कर रहा हूँ जो मैंने ऊपर बनाया था, ठीक है। वो प्राइवेट के आगे ना ये लगा देता है, सो यू डोंट हैव टू चेंज सी दैट, एंड आई होप दिस इज वेरी हेल्पफुल। मतलब ये विजुअलाइजेशन वाली चीज काफी हेल्पफुल होनी चाहिए, राइट। तो ये 40 आपने ऐड कर दिया, ठीक है, लेकिन मैं तो 90 और 95 यूज कर रहा हूँ, मैं वो यूज कर रहा हूँ तो मेरा बन जाएगा भाई, ठीक है। उसने यहाँ पे एक नया ये मैथ नंबर बना दिया, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ, और मैं यूज कर रहा हूँ ये मैथ नंबर अंडरस्कोर अंडरस्कोर वाला, तो मेरा 92.5 ही आएगा अभी भी, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। इसी तरीके से डजंट मैटर, sb1 डॉट मैथ नंबर हो गया, ठीक है, ये एक्सेस किया था, लेकिन भाई एवरेज अभी भी वही है। साइंस नंबर भी चेंज कर लो आप, फर्क ही नहीं पड़ेगा। sb1 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड?
ठीक है, चलो अब एक चीज और देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको आगे डिफाइन करते हैं। ठीक है, लेट्स से लेट मी नो इन द चैट अगर कुछ क्लियर ना हो तो। लेट्स से कि अब यार एक यूज केस आता है कि इस पढ़ाकू बंदे को ना सही में अपनी स्कोर देखना है, मतलब ही वांट टू सी द स्कोर कि भाई मेरे मैथ्स में आए कितने हैं। लेट्स से ये तो टीचर ने डाल दिए यार 95 90 थे, इसको एक्चुअली में देखना है इसके आए कितने हैं, ये कैसे देख पाएगा? इज देयर एनी वे ही कैन फाइंड हाउ मेनी नंबर ही हैज गॉट इन मैथ्स? हाउ डू यू थिंक, इज देयर एनी वे एवरीवन, यस और नो? अभी नहीं है ना भाई। अगर मैं यहाँ पे एस बी वन डॉट, ठीक है, इफ आई डू एस बी वन डॉट मैथ नंबर, तो मैं तो ये देख ही नहीं पा रहा, मैं तो ये देख ही नहीं पा रहा। ठीक है, बिकॉज आई कैन नॉट एक्सेस इट आउटसाइड, आई कैन नॉट एक्सेस इट आउटसाइड। बट वॉट आई कैन डू इज, जैसे मैं एवरेज के अंदर मैथ नंबर और साइंस नंबर कर पा रहा था, आई कैन डू समथिंग लाइक दिस, गेट मैथ्स नंबर सेल्फ, ठीक है, लेट्स से रिटर्न सेल्फ डॉट अंडर अंडरस्कोर मैथ्स नंबर, ठीक है। एंड इस तरीके से मैं ये भी बना सकता हूं, गेट साइंस नंबर सेल्फ, ठीक है, रिटर्न सेल्फ डॉट अंडर अंडरस्कोर साइंस नंबर। भाई क्लास के अंदर तो एवरीथिंग कैन बी एक्सेस ना, क्लास के अंदर तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, यूजिंग सेल्फ एवरीथिंग कैन बी कनेक्टेड, राइट एवरीवन? तो अभी मैंने डिफाइन कर दिया। अब देखो, ऐसे तो मैं नहीं ले सकता एस बी वन डॉट मैथ नंबर, बट इफ आई डू एस बी वन डॉट गेट मैथ्स नंबर, तो मैं निकाल सकता हूं। आर वी एबल टू सी व्हाट वर द नंबर एवरीवन, यस और नो? आर वी एबल टू सी हाउ मेनी नंबर्स वर देयर? Anyone has any doubt in this कि क्या हुआ ये? मतलब बेसिक सी चीज है ना, मैं बाहर उसको एक्सेस कर सकता हूँ, आई कैन जस्ट एक्सेस इट आउटसाइड, एंड इफ आई कैन एक्सेस इट आउटसाइड देन आई एम मोर देन गुड टू जस्ट डू इट। क्लियर एवरीवन, यस और नो? आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ठीक है, इसी तरीके से मैं एस बी वन डॉट गेट साइंस नंबर भी कर सकता हूँ। चलो हो गया, हाँ ओके Tolka. So I hope this is clear, Tolka, that I am able to now access this math number and size number using these methods, because inside my class I can access these variables, yes or no? Inside my class so I can access these variables na? I hope this is clear, right? Great. Now let's say tomorrow teacher has a genuine problem. Teacher is like here, this was not 95, this was 99. So let's say this padaku student, he got it paper, ठीक है, and he does the calculation again and he find out that यार score is not 95, it is 99. ठीक है, now can I change this? Can I change the score, everyone? Can I change this math score from outside? Can I change this math score from outside? Take care if you have missed 50 minutes, then please see the recording. Meanwhile, just try to understand. I'm just trying to explain a concept here that we privatized this math and science number. Okay, and now we are trying to access them and change them. So even just tell me one thing. Is it a valid problem where I'm saying here now it is 95 and I have to make it 99? Is it a valid problem? Maybe another valid problem which you can think of is ki let's say when I was creating my ID, okay, let's say when I'm creating my ID, I added my name as MAYN and I added extra K. ठीक है, extra A let's say in the end. So instead of adding my name just as Mayank, I added Mayank. So should I be able to change this name, everyone? Yes or no? In Swiggy, Zomato, Amazon, everywhere, are you able to change this name, everyone? Yes or no? So we can have use cases like this, na? Where we have to change this. How many of you agree? कितनों को लगता है कि ये चीज होनी चाहिए कि भाई एक्चुअली में जेन्युइन प्रॉब्लम है, टीचर इज लाइक कि भाई 95 थे, इसको इसका पेपर मिला and he did the calculation and he said ki nahi ma'am it is 99, you have done the mistake in summing up. Again we cannot change from outside, ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकता sb1 dot maths number, this we saw that this is going to create another variable, ठीक है। Now if I do sb1 dot average, this is still going to be 92.5, it should be increased, right? So again what I can do is I can create setter as well, def set maths number, it's gonna take self, okay, it's gonna take new maths number and it's gonna
self underscore math number is equals to new maths number. Clear everyone? Make sense? मतलब inside the class तो I can do it ना, class inside class तो I can still access everything. मतलब I can inside me तो I can access everything from me ना, it is not a problem. ठीक है एवरीवन, आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर. ठीक है, हाँ मेहुल, वी विल कम टू दैट वेयर दिस मैसेज कैन कम. But many times while enrolling, a pop-up message is there that you won't be able to change your name. So Mehul, that should be a problem now. मतलब if you are not able to change your name, मतलब you are missing something. Maybe you are not logged in. So pay attention, everyone. Now I created this. No maths number is there. I can get maths number. ठीक है, I can get science number. This we can remove. My average is 92.5 still. Let's say if I call set maths number and I call 99 here, right? So let us check if it has set it or not. SB1 not average. My average has improved. Okay, everyone. So do you think this has and we can, what we can do is I can check as well. Get maths number. Are you able to see that the number has increased? Yes or no, everyone? Are you able to see this? Yeah, I'm able to change the number. How many of you are able to see that we are able to change the number here? भाई हमने एक जेन्युइन यूज केस था कि वी नीड टू एक्सेस द नंबर, वो भी जेन्युइन था. वी नीड टू चेंज द नंबर, वो भी जेन्युइन था. सो वी हैव डन बोथ द थिंग्स. राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग एवरीवन? है ना? बट नाउ मेनी पीपल विल से कि मैं, फिर तो ये हम उधर ही आ गए ना जहाँ पे ये चालू बंदा, wherever this Chalu was able to access our numbers and he was change our number as well. How many of you think we have reached where we started? How many of you think we have reached where we started? Okay, 1 second. How many of you think that this is some kind of a problem where we have reached where we have started? जल्दी से बताओ. Everyone be active on chat. ठीक है. Yogi Devil, you will basically see this playlist. ठीक है. Everything is from complete scratch here. Exact Python, exact from complete scratch. And believe me, this is any like better than anything. Just try to see videos here. Right? We reach the same issue, right? But many people will not realize that there is some benefit which we can do. Okay, so pay attention what I can do. So while I'm trying to, let's say, so I'm just showing for math number. Okay, maybe for the time being I can just comment this. Pay attention, everyone. Maybe what I can do is I can ask for a passcode here, right? And I can maybe check passcode is equals to, let's say, 0000. Okay, then only I'm going to do this. Else I'm going to return access denied, right? In a similar way, in my maths number also, maybe I can ask for passcode, okay, or let's say teacher name. But teacher can only change it, na? So let's say if passcode is equals to, let's say, 0000 and teacher name equals to, let's say, ABC, then only I can do this. Okay, else I'm going to print access denied. Right or wrong, everyone? How many of you think that this is actually a good thing? I can set up these securities. Right or wrong, everyone? So देखो, now again, if I try to do these things, when I try to get maths number, it is showing me an error. It is missing the passcode. Let's say I passed passcode as 1234. It is saying access denied. And don't you think this is the same kind of a thing which happened
Like when you try to do things, like for example, I have an Amazon account. Can you change the password of that? Can you change my name on that? So are you able to see that how we have coupled the things? So what exactly we have done here, if each of you will understand here, is that I had attributes, okay, which here was my math number, and I created methods which were getters, get math number, and set math number. And I am basically able to connect both of them. How many of you think this is what we have able to achieve? How many of you think we have able to achieve this? Right? So now I think the problem is properly solved, where we are able to add the solution as well. Like, okay, if you want to set these number, let's say the second you add 1, 2, 3, 4, and let's say you add the name as DEF, it's giving access denied. If you make this password correct, then again it is giving you access denied. And if I give everything right, then I can do 99. Actually, what I can do, you know what I can do, everyone, like the way it happens, def, okay, authenticate. So someone was saying that it gives an error, right? It gives an error. Maybe I can call an authenticate function. Maybe I can call an authenticate function here. So instead of doing it here, okay, instead of doing all these things here, I can just directly call a separate authenticate function. Okay, so before doing anything, I can just do this self dot. So see again, if I want to call this function, everyone, then I have to make sure that I'm able to call it from anywhere. And to call it from anywhere, कि मैं इसको कहीं से भी कॉल कर सकूं, I need self. क्योंकि सेल्फ को ही पता है, मतलब मुझे ही पता है कि यार मेरे अंदर क्या क्या फंक्शन है, मेरे बिना आप वो कैसे करोगे, राइट? तो इफ लेट्स से इट्स जस्ट गोना रिटर्न 000 इज इक्वल टू पास कोड, सो ये इसको चेक करेगा और रिटर्न कर देगा. अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सेल्फ डॉट ऑथेंटिकेट कॉल कर सकता हूँ पासकोड के साथ. ठीक है, तो मैंने पासकोड के साथ ये कॉल किया, एंड दिस इज मेकिंग माई कोड अ लॉट मोर इजी टू वर्क. एंड यही कंपनीज भी यही करती हैं. सो लेट्स से नॉर्मली इफ आई ओपन नेटफ्लिक्स, ठीक है, इट्स गोना चेक यूजर लॉग्ड इन है, इज यूजर ऑथेंटिकेटेड, इज यूजर लॉग्ड इन. यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो होम पेज दिखा दो. इफ यूजर इज लॉग्ड इन, ठीक है, ऑथेंटिकेशन हो गई है तो आगे बढ़ जाओ. नाउ आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ दिस ऑथेंटिकेशन एंड एवरीथिंग हैपेंस. यस और नो? ऑथेंटिकेशन का सारा फंडा, आई होप नाउ इट इज क्लियर कि कैसे होता है. एबल टू जॉइन ऑल द डॉट्स? आर यू एबल टू जॉइन ऑल द डॉट्स एवरीवन? यस और नो? राइट, मजा आया? आई होप दिस वाज हेल्पफुल. हाँ, मतलब टेक केयर, यू कैन हैव एनी JWT ऑथ 1 ऑथ 2, कोई भी ऑथेंटिकेशन हो, लेकिन वो यहाँ पे घुसाते हो आप, यू एंटर एंड ऑल दीज थिंग्स हियर. ठीक है, तभी तो जब आप कुछ चेंज करना चाह रहे हो, जब आप यू गो टू चेंज समथिंग, तो वो ऑथेंटिकेशन एरर दे देता है. यहीं से तो यही तो आ गया, देखो ना, हमें भी तो एरर दे दिया इसने, एक्सेस डिनाइड. ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर. यस और नो? मजा आया? इस कंसेप्ट को पता क्या बोलते हैं? नॉट श्योर. लेट्स से 0 0. सो देखो 0 0 0 0. So there is a concept known as polymorphism in encapsulation. This is encapsulation. This exact thing without any definition, anything, I've explained you encapsulation. So encapsulation यही होती है. You have a capsule. So ये कहता है कि यार आपने ना bind कर दिया. You have binded together your attributes, okay, and your methods. Haven't we also binded this, everyone? Course name Kannada Natural Life is nothing. I'm teaching everything in free, and the playlist is also there which you can refer. Okay. So Hello Python is the course name if you want to basically learn a course name. But I don't think learning things will be helpful, not learning the course name. So yeah, ठीक है. Everyone, I hope this is clear. देखिए एक बार encapsulation क्या होती है? What is encapsulation? Concept used in OOPS, ठीक है, into easy to use units. देखो आपकी यही तो करते हो आप, हमने वेरिएबल और मेथड को एक साथ बाइंड कर देते हो, राइट? सो इनकैप्सुलेशन इन पाइथन अगर मैं देखूंगा तो यही कर रखा होता है. दिस इज व्हाट इज डन इन इनकैप्सुलेशन. ठीक है, मेथड्स और वेरिएबल्स को यू हैव बाइंडेड इट.
ठीक है, इट इज शोन इज यूजिंग अ प्रोटेक्टेड मेंबर, सो प्रोटेक्टेड हम पढ़ेंगे। प्राइवेट मेंबर देखो यहाँ पे प्राइवेट करे एंड दे हैव मेड इट getters or setters, so this is what it is done in that. Clear everyone what is encapsulation? Yes or no? What exactly is encapsulation? How many of you are clear with this thing? How many of you are clear with this, that what exactly is encapsulation? जावा पॉइंट पे देखते हैं क्या रहता है। प्रोटेक्टेड मेंबर सेम ही छाप रखा है क्या? हाँ सेम ही है वहां का। सो ये बहुत बड़ा पिलर है, लाइक दिस इज अ वेरी बिग पिलर एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज इनकैप्सुलेशन। ठीक है, व्हेन यू बाइंड योर मेंबर्स एंड योर मेथड्स टुगेदर। ठीक है, सो देखो ये एज है, एक्सेसिंग पब्लिक डेटा मेंबर एज कैन बी डन, फिर इसने यहाँ पे जाके इसको प्राइवेट कर दिया होगा। सो यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ, ये देखो अंडर अंडरस्कोर लेंथ अंडर अंडरस्कोर ब्रेड्थ। ठीक है, क्लियर एवरीवन, राइट और रॉन्ग? ठीक है, तो ये इनकैप्सुलेशन आपका हो गया। दिस इज वन ऑफ द मेजर पिलर ऑफ हूप्स। डेफिनेशन मैंने कहीं नहीं बताई, आई एम नॉट टोल्ड द डेफिनेशन। ठीक है, सो यस फेलिक्स, द वे यू डिफाइन दिस private and I would say protected, and then you bind it together with I would say or this thing. So using access modifier you are able to get this encapsulation. तो यही आपका encapsulation होता है। Clear? ठीक है, good to move forward. यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं बढ़िया से नोट्स आपके लिए। सो दिस एग्जैक्टली व्हाट इज इनकैप्सुलेशन एवरीवन। ठीक है, आपकी एक क्लास है विच इज लाइक अ कैप्सूल, उसके अंदर आपने डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स को एक साथ बाइंड कर दिया। सो दिस इज व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। क्लियर एवरीवन, यस और नो? इज इट क्लियर? कोई डेफिनेशन कुछ नहीं, कंसेप्ट सीधा समझा दिया, ये दिस इज द कंसेप्ट। कोई आपको बोले अब एग्जैक्ट ये प्रॉब्लम लेके समझा दो उसे कि दिस इज द प्रॉब्लम एंड दिस इज हाउ आई कैन बाइंड देम एंड गेट व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट इज एनकैप्सुलेशन। क्लियर? चलो बढ़िया। अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस क्विकली एवरीवन। ये जो आप ये बना रहे हो कंस्ट्रक्टर, दिस गेट्स कॉल्ड इन द स्टार्टिंग, दिस गेट्स कॉल्ड इन द स्टार्टिंग, यस और नो? जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हो वैसे ये कॉल हो जाता है। कैन यू थिंक ऑफ रियल टाइम यूज केसेस ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर कि इसमें आप क्या कर सकते हो? डेटा मेंबर आनंद जस्ट यही होता है, रोल नंबर, मतलब इनके अलग अलग नेम्स होते हैं। नेम मतलब सी प्लस उसमें एक्चुअली इट इज कॉल्ड एज डेटा मेंबर। सो रोल नंबर, नेम, इनको एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज, डेटा मेंबर, नाउन, इंस्टेंसेस, ये सब बोलते हैं। क्लियर एवरीवन? अब एक चीज बताओ, दिस इनिट इज गेटिंग कॉल्ड व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, व्हेन यू आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, व्हाट यू थिंक कैन ऑल द थिंग्स व्हिच कैन बी डन हियर, ऑल द थिंग्स व्हिच कैन बी डन हियर, मतलब इसका यूज क्या है? मैं एक यूज केस बताता हूं, आई विल टेल यू अ यूज केस, ठीक है, विच इज वेरी ऑलवेज गोना हेल्प यू। इफ यू वांट टू डू एनीथिंग, इफ यू वांट टू डू एनीथिंग इन द स्टार्टिंग ओनली, लेट्स से आपने ओला की ऐप स्टार्ट करी आपने, इट आस्क फॉर लोकेशन एक्सेस, इट चेक्स फॉर इंटरनेट, ऑल दीज थिंग्स इट चेक्स ना, यस और नो? इनिशियली मांग लेते हैं ना वो इनिशियलाइज होने के टाइम पे ही। इफ यू गो ऑन योर फोन एंड ओपन उबर और ओला, दे आस्क फॉर योर लोकेशन एक्सेस, दे आस्क फॉर योर इंटरनेट एक्सेस। अगर इंटरनेट एक्सेस नहीं होता तो वो उसी टाइम स्टार्ट होने से पहले आपको बता देता है। राइट और रॉन्ग एवरीवन? सो what you can do is you can actually have some methods, let's say okay इस तरीके से self dot maybe let's say check internet access। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि when tomorrow you will be going on any company and making products, तो ये वहां पे बहुत यूज आएंगे। ठीक है, टेक केयर, आई थिंक यू हैव जॉइन लेट, आई हैव एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्ली कि व्हाई वी आर यूजिंग अंडर अंडरस्कोर मैथ नंबर इंस्टेड ऑफ मैथ नंबर, दिस इज मेकिंग देम प्राइवेट। ठीक है, जस्ट सी द रिकॉर्डिंग वंस, ये प्राइवेट बनाना है इनको। ठीक है, और ये प्रोटेक्ट सॉरी ये भी प्राइवेट है, प्राइवेट। ठीक है, चलो देन लेट अस मूव फॉरवर्ड एवरीवन। सो जो भी चीज आपको करनी है बिफोर सेटिंग अप एनीथिंग, आपको इंटरनेट एक्सेस चेक करना है, लोकेशन एक्सेस चेक करना है, ऑथेंटिकेशन करनी है, लॉगिन चेक करना है, इफ यू वांट टू टेस्ट एनी अदर थिंग, ठीक है, यू कैन डू इट ऑल इन द इनिशियलाइज इन इट ओनली, कंस्ट्रक्टर ओनली। इज इट क्लियर एवरीवन, यस और नो? इज दिस थिंग क्लियर कि कंस्ट्रक्टर का और क्या यूज केस है? ठीक है,
चलो, let us move forward then. Let us learn few things more. Just tell me now. Let me copy this and let me go. Let us go to the next. I would say let us go to the next thing and let us understand the next concept. अच्छा, everyone. I hope अभी तक जो भी समझाया सब मजे से समझ आ गया होगा. Like pretty sure that everything should be clear by now. If anything which is there which is not clear, let me know. ठीक है, बिकॉज अगेन मेरे को आई होप आई एम पुटिंग इन दैट मच एफर्ट कि एक बार आपने यहाँ से ऊप समझ लिया तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आई एम मेकिंग श्योर दैट आई टीच यू एवरीथिंग. मतलब डेफिनेशन तो मुझे याद नहीं है. आई इवन डोंट रिमेंबर डेफिनेशन. आई एम मेकिंग श्योर दैट आई एम टीचिंग यू एवरीथिंग विद प्रॉपर एग्जांपल्स एंड विद इंट्यूशन. Nowhere I'm gonna make sure that you need to remember anything. So I'm pretty sure कि अब आपने ये प्रॉब्लम समझी तो you understand what encapsulation actually is. So can I get a yes or no on that? ठीक है, चलो. So let me know in the chat. Meanwhile, I'm explaining you another concept. ठीक है, cool. अब दो चीजें, दो और प्रॉब्लम आएंगी. ठीक है, एक प्रॉब्लम बनाते रहेंगे और उससे चीजें समझते रहेंगे. दो चीजें हैं. फर्स्ट, ठीक है, हम यहाँ पे ये रोल नंबर मांग रहे थे. वी वर आस्किंग फॉर दिस रोल नंबर, है ना. व्हाट इफ लेट्स से यार ये रोल नंबर जो है दिस आई हैव टू गिव माई सेल्फ, और लेट्स से इसको रोल नंबर को रहने देते हैं. व्हाट इफ लेट्स से यहाँ पे ना एक मुझे ये देना है सेल्फ डॉट स्टूडेंट नंबर, कि आप स्टूडेंट कितने बना सके, कितने अभी तक कर सके हो, स्टूडेंट कितने कर चुके हो आप अब तक. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू व्हाट द इंट्यूशन, व्हाट द आइडिया इज. पे अटेंशन एवरीवन. ठीक है, नाउ एज पर कोड कंसेप्ट इज क्लियर फॉर. हाँ, तो आनंद द थिंग व्हिच आई हैव एक्सप्लेन दैट इज एनकैप्सुलेशन. उसके अलावा कुछ नहीं है. एनकैप्सुलेशन यही होता है. समवेयर और अदर पीपल विल बी बाइंडिंग दीस थिंग्स टुगेदर एंड ये इनकैप्सुलेशन कहते हैं. अगर आप जाके देखोगे एज आई शोड यू तो यही डेफिनेशन दिखनी है आपको हर जगह. ठीक है, ये एक साथ इनको बाइंड कर दिया. ठीक है, यहाँ पे आप ये देखोगे प्राइवेट मेंबर, प्रोटेक्टेड मेंबर. बट ना प्रॉब्लम यही है कि थियोरेटिकली कभी समझ नहीं आता. प्रॉब्लम से कोई समझाता ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या थी और सॉल्यूशन क्या किया. ठीक है, तो ये यही कह रहा है कि देखो जब अगर आप इसको एक्सेस कर पा रहे हो ना अंदर के अंदर, आपने ये डिस्प्ले से, ठीक है, ये एज और नेम यूज कर लिया, तो ये ही इनकैप्सुलेशन है कि आपने इन दोनों को इंटरमिंगल कर दिया और आप इसको यूज कर रहे हो. नथिंग एल्स इज इनकैप्सुलेशन. ठीक है, बट विदाउट द प्रॉब्लम इट इज नेवर गोना बी क्लियर. ठीक है, कूल. डेफिनेशंस में नहीं जाना. डेफिनेशन इज द शिटिएस्ट थिंग व्हिच यू कैन एक्चुअली लर्न इन oops. ठीक है, चलो एवरीवन, लेट अस नाउ गेट बैक एंड सी द स्टूडेंट नंबर. सो पे अटेंशन एवरीवन. व्हाट आई वांट इज कि लेट्स से मैंने दो स्टूडेंट्स बनाए. मैंने ये पढ़ाकू और चालू दो स्टूडेंट्स बनाए. सो आई वांट टू सी कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एक्चुअली इनरोल्ड इन माय स्कूल. लेट्स से ये स्टूडेंट बेटा एक स्कूल यूज कर रहा है. ठीक है, सो लेट्स से एबीसी पब्लिक स्कूल इसको यूज कर रहा है. लाइक एबीसी पब्लिक स्कूल इज यूजिंग दिस. Now, do you think it's a valid question? Yeah, how many students have actually enrolled in your school? How many students have actually come? Yes or no? How many of you think this is a valid question? How many of you think it's a valid question? तो इसके लिए मैं एक काम करता हूं. मैं एक स्टूडेंट नंबर बनाता हूं इधर. स्टूडेंट नंबर, उसको 0 कर देता हूं इनिशियली. ठीक है, सेल्फ डॉट स्टूडेंट नंबर करता हूं, इसको स्टूडेंट नंबर +1 कर देता हूं. ठीक है, +1 कर देता हूं. अभी के लिए ना बस आई एम रिमूविंग फ्यू थिंग्स क्योंकि वो कोड थोड़ा लंबा कर देंगी. तो लेट मी गेट रिमूव ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, लेट अस जस्ट आस्क नेम एंड रोल नंबर ओनली. तो हम इतना ही रखते हैं अभी के लिए. ठीक है, सो दैट इट इज अ लॉट क्लियर. ओके, एंड ये सारी चीजें भी हटा देते हैं अभी के लिए हम. ठीक है, सो आई एम जस्ट रिमूविंग एवरीथिंग, मेकिंग इट अ लॉट इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा. ठीक है, चलो बस इतना ही रख रहे हैं हम. ये उड़ा देते हैं सारा. ये सब हमें समझ आ गया है. ये सब हमें कुछ नहीं चाहिए. ठीक है, सो ठीक है, चलो कूल है. अब लेट्स से मैंने SB1 में स्टूडेंट अंडरस्कोर बेटर एक बनाया विद नेम मयंक एंड लेट्स से रोल नंबर इज 123 ओनली 123. और मैंने एक SB2 बनाया स्टूडेंट अंडरस्कोर बेटर. ठीक है, लेट्स से आनंदी रखते हैं एंड 456. चलो अब एक चीज बताओ एवरीवन, इफ आई डू प्रिंट SB1 डॉट स्टूडेंट नंबर and SB2 dot student number, what should be the answer I should get? What will be the answer I will get?
What should be the answer I should get, everyone? Tell me in the chat quickly. Be lot active. मजा आ रहा है तो बहुत ज्यादा अच्छे से वो करो, ठीक है? इंटरेक्ट विद मी. आई होप बोरिंग तो नहीं लग रहा होगा. और अगेन एज आई सेड कि काफी ट्राइंग टू बेसिकली गिव यू हाई क्वालिटी कंटेंट, सो होपफुली दिस इज हेल्पफुल. बताओ एवरीवन, व्हाट विल बी द आंसर? 0 and 1, ठीक है. एवरीवन एल्स? 1 and 2, ठीक है. चलो एक बार समझते हैं, एक बार इस चीज को ना पाइथन में देखते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझ आएगा एग्जैक्टली हो क्या रहा है. ठीक है, इजी कोड है. पाइथन ट्यूटोरियल, पाइथन इसमें रन करके देखते हैं. मैं भी रन कर दूंगा, लेकिन मैं इसमें चाहता हूँ रन करें. ठीक है, इसमें देखें या फिर मैं समझाऊं? एवरीवन, शुड आई एक्सप्लेन इट और यू वांट टू सी इट हियर इन द पाइथन ट्यूटर? वेयर शुड वी सी इट? शुड आई एक्सप्लेन बाय ड्राइंग या फिर वाया पाइथन ट्यूटर? मतलब एक्सप्लेन तो दोनों में कर रहा हूँ बट चलो दोनों कर देते हैं. पहले फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है? पहले मैं समझाता हूँ, फिर हम उस पर भी देख लेंगे. बोथ फेस करते हैं, ठीक है? पे टेंशन एवरीवन की हो क्या रहा होगा एग्जैक्टली. हाँ, यहाँ पे पेस्ट हो गया है. एक सेकंड यार, 1 सेकंड एवरीवन. ठीक है, ये मेरा कोड है यहाँ पे. चलो, attention, pay attention everyone, because again this is very important concept and people are getting confused here and I want zero confusion. सबसे पहले मैंने SB1 बनाया, ठीक है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई क्रिएटेड SB1. इन द वेरी स्टार्टिंग एक टेम्पलेट क्रिएट हुआ होगा. नाउ यूजिंग दिस टेम्पलेट आई एम क्रिएटिंग SB1. ठीक है, इन SB1 आई एम सेंडिंग द नेम विच इज इक्वल्स टू मयंक. राइट एवरीवन? कैसे होएगा भाई? यहाँ पे जाएगा, स्टूडेंट बेटर हुआ, इसका इनिट कॉल होएगा. It's gonna set roll number and name. So roll number is gonna be 1, 2, 3 and name is gonna set Mayank. Anyone has any doubt till here? Anyone has any doubt till here? What happened? कि name and roll number is setting? Yes or no? ठीक है? Now pay attention. This student number is gonna be 0. This student number पहले ये 0 होएगा. Then in my self, so ये जो self की चीजें थी ना, जो SB1 के अंदर आएंगी, their student number, okay, it's gonna be student number जो यहाँ पे था +1, तो ये 1 हो गया. ठीक है, यहाँ पे किसी को डाउट है एवरीवन? टिल नाउ एनीवन हैज एनी डाउट हियर? एनीवन हैज एनी डाउट टिल हियर? ठीक है, कूल. अब सेम चीज हम SB2 के लिए करते हैं. यहाँ पे SB2 के लिए क्या होएगा? SB2 के लिए दोबारा मेरा इनिट कॉल होएगा, बट दिस टाइम नेम is gonna be set to Anand, right? Name is gonna be set to Anand and roll number is gonna be set to 4, 5, 6. Now again student number is gonna be initialized as 0. यही तो होएगा ना, ऐसी तो जा रहा हूं मैं, right? And then again I'm gonna do student number +1. So self के अंदर जो ये चीजें थी, जो SB2 के अंदर जाएगी, तो इसका student number is again gonna be 1. Does it make sense or anyone has any doubt in there, in this thing? Does it make sense or anyone has any doubt in this? ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे भी देख लेते हैं. आई एम गेटिंग 1 and 1. आई होप दिस मेक सेंस एवरीवन, यस और नो? एग्जैक्टली क्या हो रहा है? नहीं आया तो चलो एक बार यहाँ पे भी देखते हैं. ठीक है, देखो जल्दी से. सबसे पहले तो ये ढांचा तैयार हो गया, एवरीथिंग हियर इज रेडी. नाउ आई एम गोना क्रिएट माय SB1 स्टूडेंट बेटर. ठीक है, क्या होएगा? जैसे ये स्टूडेंट बेटर कॉल होएगा, इसका इनिट कॉल हो जाएगा. द ओवरऑल आई वुड से दिस इज गोना गेट कॉल्ड. इनिट कॉल हुआ, इट गोज टू इनिट.
नाउ सी इट्स गोना सेट दिस इन सेल्फ स्टूडेंट बेटर इंस्टेंस, रोल नंबर पहले सेट किया 1 2 3, देन नेम सेट किया, देन एक स्टूडेंट नंबर की वैल्यू 0 करी यहाँ पे। स्टूडेंट देखो ये इनिट का ब्लॉक चल रही है, इनिट का ब्लॉक चल रहा है, स्टूडेंट नंबर 0 किया, ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट नंबर को 1 सेट कर दिया। वापस आ जाते हैं, ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई, दिस लाइन गेट कंप्लीटेड, नाउ आई एम ऑन SB2, वो ब्लॉक खत्म हो गया, दिस फंक्शन ऑफ इनिट गॉट कंप्लीटेड एंड आई गॉट वन SB1 जिसकी वैल्यू ये है, आई वांट वन SB1 जिसकी वैल्यू ये है। चलो SB2 क्रिएट करते हैं, SB2 डेफ इनिट, अभी इनिट का ब्लॉक दोबारा क्रिएट हुआ, इस बार इसके बाद नेम आनंद आया, रोल नंबर 456 आया है, सेल्फ में हमें पता है कि वो इंस्टेंस ही आएगा। नेक्स्ट करो, रोल नंबर में 456 सेट हुआ, नेम में आनंद सेट हुआ, स्टूडेंट नंबर 0 आया था मेरे पास, यहाँ पे अंदर 0 डिफाइन हुआ, 0 आया नहीं था, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, स्टूडेंट नंबर जब मैंने यहाँ इसका डिफाइन किया तो 1 हो गया, ठीक है, रिटर्न हम कुछ कर नहीं रहे, SB2 का इंस्टेंस ही बन गया। दोनों में सेम है या नहीं है? इज इट सेम एवरीवन, यस और नो? अब देखो जब मैं SB1 डॉट स्टूडेंट नंबर करूंगा तो ये वाली वैल्यू कर देगा, SB1 के अंदर स्टूडेंट नंबर क्या है, SB2 डॉट स्टूडेंट नंबर करूंगा तो वो ये वाली वैल्यू कर देगा, एंड द वैल्यू इज 1 and 1 in both, and see we got an output as 1 and 1. Clear everyone, yes or no? Yes or no? So let us understand the problem. My problem, the solution would have been if this would have been 2. अगर ये 2 हो जाता, because then it would have told me कि यार यहाँ पे ना 2 बंदे बेसिकली एनरोल कर चुके हैं, 2 students have enrolled, but I am getting the answer as 1. So this is the problem majorly, right? So now let us solve this problem. अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पे अटेंशन, ये जो मेरा स्टूडेंट बेटर है, ये जो मेरा स्टूडेंट बेटर है, I can actually create a variable here directly. Student, let me make it snum and let me make it 0. ठीक है, तो इसको यहां से उड़ाते हैं, इसको इनिट के अंदर नहीं बनाना आपको, इसको इनिट के अंदर नहीं बनाना, यू हैव टू मेक इट आउटसाइड, क्योंकि नाउ दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ माय स्टूडेंट बेटर, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ माय स्टूडेंट बेटर, मतलब ये मेरी एक पूरी क्लास की प्रॉपर्टी है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर इंस्टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई लेट्स से आई सी कि ये दोनों बच्चे कौन से स्कूल में है, तो वो स्कूल तो स्टूडेंट प्रॉपर हर स्टूडेंट का सेम स्कूल होगा ना जो यहाँ पे है, ठीक है, तो ये क्लास लेवल प्रॉपर्टी है, दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी एट आई वुड से एवरी इंस्टेंस लेवल। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, नहीं पहले ग्लोबल वेरिएबल समथिंग डिफरेंट, डोंट गेट कंफ्यूज अगेन, ग्लोबल वेरिएबल समथिंग वेरी डिफरेंट, दिस इज जस्ट अ क्लास वेरिएबल, सो दिस इज नोन एज क्लास वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है, बिकॉज दिस रिमेन्स स्टैटिक, इसमें जो आप चेंज करोगे वो आएंगे। अब पे अटेंशन एवरीवन, व्हाट्स गोना हैपन, so what I can do is student better, okay, and if I dot, then I can access this like this, because this is the property of my student, this is the property of my class, right? So I can make it like this, तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं, I can access this using my class altogether, because this is my class property, ठीक है। अब करते हैं, अब सेम चीज करते हैं, देन आई एम गोना शो यू एग्जैक्टली क्या हुआ। देखो मैं पहले आपको डिफाइन करता हूँ कि हुआ क्या एग्जैक्टली, सारी चीजें सेम रही, बट इस बार हुआ क्या कि दिस प्रॉपर्टी आई मेड फॉर क्लास, दिस इज स्टैटिक, स्टैटिक वी से टू थिंग्स व्हिच बेसिकली होल्ड द चेंजेस, सो इफ आई मेड अ चेंज इन दिस नंबर इज गोना गेट होल्ड, ओके, लेट मी शो यू, सो आई हैव रीडिफाइंड दिस एंड सी नाउ इट इज 1 and 2, ठीक है, तो इसको एक बार वैसे देख लेते हैं, वहां पे देखते हैं इसको पाइथन ट्यूटोरियल में कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। पे अटेंशन एवरीवन, देखो सबसे पहले ये क्लास स्टूडेंट बेटर बनी, आपको यहाँ पे ये एस नंबर अलग से दिख रहा है, आर यू एबल टू सी दिस एस नंबर डिफरेंटली एवरीवन, इट इज नॉट इनसाइड इनिट इन दिस टाइम, यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस इज राइट कि एस नंबर अब एक क्लास के अंदर बना है, दिस इज इनसाइड अ क्लास, ये क्लास का एक वेरिएबल है, this is not a variable of init or any particular instance. How many of you are able to see this? ठीक है, cool. So ये बार बार इनिशियलाइज नहीं होएगा, अब आपने ये ढांचा बना दिया ना, अब आप इसको यूज करोगे, बट आप उसमें अपडेट भी कर दोगे। नाउ लेट अस सी, अब मैं जैसे ही नेक्स्ट करूंगा ये इनिट पे जाएगा, ठीक है, देखो नेक्स्ट किया मैंने, ये इनिट पे गया, यहाँ से कहाँ गया, यहाँ से सीधा इनिट पे गया, देखो कैसे मूव हुआ, कर्सर देखो कहाँ मूव हुआ, फर्स्ट द कर्सर इज हियर, द सेकंड आई गो टू नेक्स्ट, this is where my cursor is, then next again सेल्फ रोल नंबर क्या हुआ, रोल नंबर, ठीक है, चलो ये तो हमें पता ही जल्दी से हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट बेटर एस नम
स्टूडेंट बेटा एस नम, अब देखो चेंज कहाँ होएगा, यहां पे चेंज होएगा इसके अंदर, ये 1 हो गया और मैंने इसकी प्रॉपर्टी मेरे स्टूडेंट नंबर के अंदर डाल दी, स्टूडेंट नंबर 1 हो गया यहाँ पे, यस और नॉट एवरीवन, ठीक है। अब देखो जब मैं बाहर आ गया तो मेरी यहाँ की वैल्यू 1 ही है, अभी जीरो तो नहीं हुई, इज इट स्टिल 1 एवरीवन, यस और नो, इज इट स्टिल 1, इज इट स्टिल 1, क्लियर, क्लियर एवरीवन, है ना। अब दोबारा रन करते हैं, इस बार ये ढांचा बना, इसके पास आनंद और 4 5 6 आया है, लेट अस गो नेक्स्ट, रोल नंबर और वो तो सेट हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट बेटा रेस नाम है यहाँ पे 1, इसकी वैल्यू 2 आएगी एंड आई कैन मूव फॉरवर्ड, इस बार ये 2 ऐड हो गया यहाँ पे, बढ़िया, बस अब प्रिंट कर दो, 1 और 2 आंसर आ गया आपका, ये रहा यहाँ पे आंसर आता है, आंसर थोड़ी छोटी सी जगह आता है इसमें, ठीक है, बट आंसर आपका 1 और 2 आ गया। मजा आया, बढ़िया एक्सप्लेनेशन, आई होप बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टैटिक वेरिएबल, विजुअलाइजेशन वगैरह सब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आई थिंक, मतलब प्रॉपर यहाँ से तो और ज्यादा क्लियर हो जाना चाहिए, बट द वे आई एक्सप्लेन एवरीथिंग, concept of static variable clear, yes or no, yes or no everyone, है ना, आई होप नाउ तो इट शुड बी परफेक्टली क्लियर। अब एक चीज बताना, ठीक है, जस्ट पे अटेंशन। अब दिक्कत क्या होती है जिंदगी में, दिक्कत क्या रहती है, SB3 ये चालू वाला बंदा अभी भी अवेलेबल है, चालू स्टूडेंट अभी भी अवेलेबल है, ठीक है। अब भाई ये चालू है, ये तो चालू है, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखना, स्टूडेंट नंबर हो गया यहां से तो, और मैं क्लास यूज करके मेरा ये वेरिएबल भी एक्सेस कर सकता हूँ, एसनम एक्सेस कर सकता हूँ मैं एवरीवन, यस और नो, क्योंकि ये मेरी क्लास का वेरिएबल है, राइट, आई कैन एक्सेस दिस, है ना, जस्ट द वे आई वाज डूइंग इट, ठीक है, कूल है। अब ये चालू बंदा अभी भी है यार, दिस चालू पर्सन इज स्टिल अवेलेबल, डू यू थिंक इट ही कैन डू समथिंग लाइक दिस, he can do something like this, yes or no, how many of you think he can do something like this, कर सकता है। तो जहां पे अगेन सेम चीज, जहां पे वेयर, हाँ आनंद बताओ क्या कंफ्यूजन है, व्हाट्स द कंफ्यूजन, एवरीवन एल्स जस्ट लेट मी नो इफ इट इज क्लियर और नॉट। फिर देखो एक चीज समझो, ये जो वेरिएबल है स्टूडेंट बेटर क्लास, ये तो मेरे क्लास का है ना, दिस इज तो इज माय क्लास वेरिएबल, राइट, है ना, दिस इज माय क्लास वेरिएबल। आनंद अगर मैंने यहाँ पे ये SB3 स्टूडेंट बनाया है, SB3 स्टूडेंट नंबर क्या एग्जैक्टली exactly? Didn't get your confusion, Anand. Can you just let me know once? अच्छा आई थिंक मैंने रन नहीं किया था, अब ये कह रहे हो क्या कि ये 3 क्यों आ रहा है, आई मस्ट नॉट रन इट, अब हो गया रन, ठीक है। हाँ सो फर्स्ट स्टूडेंट और SB1, सेकंड और SB2 एंड नाउ इट इज SB3 एंड माय स्टूडेंट, अगर मैं स्टूडेंट बेटर में देखूं डॉट snum, सो इट इज 3 ओनली, 3 बंदे बना दी ना मैंने, SB1 SB2 एंड SB3, सो मयंक आनंद एंड चालू 3 हो गए। सो आई डिडंट रन इट आई थिंक, सो इसलिए वो इशू आ रहा होगा, मैंने ये रन नहीं किया था, आई वाज जस्ट डायरेक्टली ट्राई टू एक्सेस इट, सो इसलिए इशू आ रहा होगा, ठीक है, कूल। चलो अब यार ये बंदा ये कर सकता है क्या कि इसको ये 10 इतना बड़ा कर दे, ये जो चालू बंदा है, कैन यू डू द सेम थिंग, यस और नो, कैन यू डू द सेम थिंग, हाँ माय बैड, आई जस्ट डिडंट रन इट, सो दैट्स व्हाई इट वाज शोइंग समथिंग लाइक दैट, कैन ही डू दिस एवरीवन, तो पहले रन करके देखते हैं,
ठीक है, एक्सेस करके देखते हैं। हो गया। अब इससे दिक्कत क्या है, अब मैं तो बनाऊंगा चौथा बंदा SB4 स्टूडेंट अंडरस्कोर बेटर। ठीक है, लेट्स से पढ़ाकू आया इसके बाद। हाँ, द प्रॉब्लम मैं सोच रहा हूँ यार कि मेरे पास इतने सारे बंदे आ गए, मतलब मेरे स्कूल में, लेट्स से दिस इज माय स्कूल एंड आई गेट दिस वेरिएबल। आई आस्क टीचर की यार अच्छा बताना कितने बच्चे एनरोल कर चुके हैं। लेट्स से मैंने कोई कोर्स बनाया कल को, या फिर आई एम मेकिंग दिस यूट्यूब वीडियो एंड आई आस्क फॉर कि कितने बंदे वो कर रहे हैं। किसी ना किसी ने मेरा कोड देख लिया, उसने कहा यार सही है यार, सर ने तो ये क्लास बना रखी होगी, ये इसमें आया, चलो इसको चेंज कर देता हूँ। मैं ऐसे यार इतने सारे बच्चे आ जाएंगे मेरे उसमें। Although I hope I reach this number someday. But anyway, are you able to see the problem, everyone? Yes or no? Are you able to see this problem? What exactly is the problem here? है ना? Solution क्या है? ठीक है, हाँ, चालू टाइप स्टूडेंट मेक दीज थिंग्स इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन वही है, इसको पूरा का पूरा उठा के प्राइवेट कर दो। सो जो अंडरस्टैंडिंग हमारी इंस्टेंस वेरिएबल्स पे चलती है वो हमारी स्टैटिक वेरिएबल्स पे भी चलती है। मेक इट प्राइवेट। जैसे ही प्राइवेट कर दोगे, जैसे ही प्राइवेट कर दोगे, अच्छा हाँ, देखो ये एरर क्यों आया, लेट मी एक्सप्लेन। एनीवन कैन टेल मी एरर क्यों आया? प्लीज सी द एरर। क्या एरर आया? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एसनम। ये कह रहा है यार इस क्लास के पास ये एसनम वाला कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं, ये एरर दे रहा है ये। कैन एनीवन टेल मी क्या ठीक करना है मुझे? आई टोल्ड यू अबव एज वेल कि जैसे ही आप यहाँ पे इसको प्राइवेट कर देते हो ना, एवरीवेयर एल्स एज वेल यू हैव टू मेक श्योर दैट यू एक्सेस इट यूजिंग दिस प्राइवेट थिंग, है ना? देखो, राइट एवरीवन। सो जैसे आपने इसको प्राइवेट कर दिया, भाई अब सब प्राइवेट जगह, इसको हर जगह प्राइवेट से एक्सेस करो। क्या हुआ है, रन नहीं करा मैंने ये? एक सेकेंड यार, और कहाँ पे यूज कर रखा है मैंने? अच्छा, यहाँ पे भी यूज कर रखा है। ठीक है, चलो ठीक है। यहाँ तो ये तो एक्सेस कर सकते हो आप स्टूडेंट नंबर वगैरह, लेकिन जो आपकी क्लास का है, जो आपकी क्लास का ये वाला है, ये एक्सेस करके देखते हैं। एरर दे दिया, क्या बना लेने चाहिए हमें? व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस एवरीवन? व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? Getters and setters, right or wrong? We should make getters and setters. Yes or no, everyone? Getters and setters बना लेनी चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ, should I have self here? Should I have self here or not? अगर मैं इसका getter बना रहा हूं, if I am making a getter for this, which will returns me student underscore better, ठीक है, dot get student number. Do you think that I should have self here? How many of you think this should be there? How many of you think this should not be there? Thumbs up अगर होना चाहिए, thumbs down अगर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो देखो, लेट मी डू वन थिंग, लेट मी फर्स्ट नॉट टेक सेल्फ। अच्छा एक ना चीज समझो, फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड दिस। मैं यहाँ पे सेल्फ यूज कर रहा हूँ, डू आई नीड टू यूज सेल्फ हियर? एम आई यूजिंग सेल्फ हियर टू गेट दिस इंफॉर्मेशन? फर्स्ट टेल मी दिस। एक तो आई थिंक ये ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा ये ना मुझे पता है ये क्यों मच रहा है, नो वरीज, अंडरस्कोर एस होना चाहिए। ये था ना अंडरस्कोर एस। एम आई यूजिंग सेल्फ हियर एवरीवन? भाई ये क्या, ये एक इंस्टेंस की प्रॉपर्टी है। इज इट अ प्रॉपर्टी ऑफ SB1 SB2? नहीं ना, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ माय ओवरऑल क्लास, और मैं यहाँ पे यूज भी नहीं कर रहा। तो इफ आई एम कॉलिंग दिस, ठीक है, अच्छा मैंने डिफाइन नहीं किया इसको, एक सेकेंड, वन सेकेंड एवरीवन, जस्ट आई एम रीस्टार्टिंग द कर्नल। नेम सेम है ना, तो थोड़ा सा उससे इशू आ रहा है ये। ठीक है, जस्ट रीस्टार्ट द कर्नल सो दैट एवरीथिंग गेट्स क्लियर। पे अटेंशन। एक बार रीस्टार्ट, कर्नल रीस्टार्ट क्या करता है, सब उड़ा देता है, बिल्कुल क्लीन स्लेट से कर देता है चीजें। ठीक है, देखो अब मैंने क्लास बनाई,
ठीक है, मैंने विदाउट सेल्फ बनाया अभी, ठीक है, ये तो नहीं कर पाऊंगा मैं, ये तो इशू आ जाएगा। बट व्हाट आई कैन डू इज स्टूडेंट better dot c get student number and I'm able to see this too without passing self. The reason is I'm not using self. SB1 के पास तो अपना ये स्टूडेंट नंबर है ना, इसके लिए आप गेटर या सेटर बना लो। यू कैन क्रिएट अ गेटर या सेटर फॉर दिस थिंग। क्लास की प्रॉपर्टी के लिए क्यों चाहिए आपको ये? व्हाई डू यू नीड दिस फॉर क्लास की प्रॉपर्टी? आई होप दिस इज क्लियर एज वेल एवरीवन, यस और नो? एंड आप इसके आगे नहीं, इसे डेकोरेटर बोलते हैं, टू जस्ट शोकेस कि यार ये एक स्टैटिक मेथड है, दिस डजंट नीड, इसको हम इसलिए यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सो व्हाट आई डिड वाज, सी आई जस्ट प्रेस एंड दिस थिंग एट द रेट एंड स्टार्टेड स्टैटिक मेथड। सो ये बाय डिफॉल्ट पाइथन में होता है, जिसमें आप कहते हो कि यार इसको डेकोरेट कर दिया कि यार ये एक स्टैटिक मेथड है, तो प्लीज इसको वैसे ही डील करना। इज इट क्लियर एवरीवन नाउ, यस और नो? इज इट क्लियर, यस और नो? आई होप इट शुड बी अ लॉट क्लियर नाउ कि ये क्या होती है स्टैटिक प्रॉपर्टी, यूज क्यों आती है, सबसे मेन तो वही है, बता तो देता है कोई भी क्या होती है ना? ग्रेट, बढ़िया, चलो, होप इट इज अ लॉट हेल्पफुल एंड लॉट क्लियर। अब एक चीज समझना, ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग एवरीवन। सो ये हो गया, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस, इफ इट इज अ लॉट क्लियर, थैंक यू फॉर ऑल द इमोजीज, आई थिंक आप लोग वैसे ही कर रहे हो तभी आ रहे हैं, ठीक है, कूल है। चलो अब ना एक चीज समझना, एक्चुअली व्हाट वी कैन डू, सो अगेन बिकॉज आई डोंट टीच टॉपिक नॉर्मली, आप ना ये मेथड्स भी वैसे बना सकते हो। लेट्स से एक टीडीएस मेथड बना देता हूँ, बहुत ज्यादा अब वो रहेगा, ठीक है। लेट्स से आप इस टीडीएस में इसका रिटर्न दे देते हैं कि टीडीएस आपको 10% काट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो इसको मैंने प्राइवेट बनाया है, तो ये देखो अंडरस्टैंडिंग वही है, दे कैन बी मेक प्राइवेट, ठीक है। तो ये जो एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पे अब ये ऑथेंटिकेट था, डू यू थिंक एवरीवन दिस ऑथेंटिकेट मेथड बाहर किसी को देखने की जरूरत है? डू यू थिंक यार दिस SB1 ये ऑथेंटिकेट जो मेथड है, डू यू थिंक इट इज सम मेथड व्हिच इज नीडेड फॉर आउटसाइड वर्ल्ड टू सी एज वेल? ऑथेंटिकेशन तो मैं अंदर ही करूंगा ना कहीं, आई विल बी डूइंग दिस। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे अब आप जब यहाँ पे प्लेस करते हो ऑर्डर, जब आप Amazon पे प्लेस करते हो, तो पीछे क्या होता है जब आप पे कर देते हो, क्या होता है, सक्सेस हुआ, फेलियर हुआ, सिर्फ आपको वो दिखता है, पीछे और क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे तो आपको फर्क नहीं पड़ता ना, राइट और रॉन्ग एवरीवन? अब ये ऑथेंटिकेट मेथड, मतलब मैं ऐसे, मेरे को थोड़ी कोई मेथड चाहिए ऑथेंटिकेट के लिए, भाई अगर मैं ऑथेंटिकेट कर रहा हूं तो मुझे मेरा अकाउंट दिखा दो, अगर नहीं कर रहा तो अलग चीज है, यहाँ पे साइन इन के लिए बोल दो। सो आप ना अपने मेथड्स को भी प्राइवेट या प्रोटेक्टेड बना सकते हो, सो यू कैन मेक योर मेथड्स आल्सो प्राइवेट, ठीक है। सो ये डबल अंडरस्कोर जैसे मैंने ऐड किया, I hope everyone will understand what is going to happen. SB1.c. Now I am not able to see this. But you can use it still. You can use it inside. वो इशू नहीं है, ठीक है। और लेट्स से सैलरी कर लेते हैं इसको, ठीक है। इन अ सिमिलर वे, लेट्स से ये टीडीएस है, भाई आपकी कंपनी कितना टीडीएस काटती है, 7.5 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, आपको क्या जानने की जरूरत है उस फॉर्मूले को? आपको तो कोई जरूरत नहीं है, यू शुड नॉट बी एबल टू एक्सेस इट, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू इज इन अ सिमिलर वे आई कैन मेक दिस, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे एक सेल डॉट सैलरी कर देते हैं, विच इज इतनी, ठीक है, इसको 10,000 कर देते हैं। अब ये सैलरी की जगह मैं कर देता हूँ सैलरी अंडरस्कोर इन हैंड, ठीक है। तो पहले तो मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेट कॉल करता हूँ, पहले तो मैं यहाँ पे सेल्फ से ऑथेंटिकेट कर लेता हूँ कि भाई हाँ बंदा सही में सही है या नहीं है, इसको अंडरस्कोर करके मैं कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। 000 पास कर देता हूँ, ठीक है। सो इफ अगर हमारा ऑथेंटिकेशन हो गया, देन मैं क्या करूंगा, देखो मैं रिटर्न करूंगा जो भी मेरी सैलरी है, सेल्फ डॉट सैलरी माइनस, अब देखो स्टूडेंट बेटर डॉट अंडरस्कोर जो भी मेरा टीडीएस था, ठीक है। यहां पे भी मुझे सेल्फ नहीं चाहिए क्योंकि ये एक प्राइवेट मेंबर है। तो आप ये ऐसी चीजें ना जो एक क्लास लेवल होती है वो भी सब वो बना सकते हो, प्राइवेट भी, प्रोटेक्टेड भी, ये मेथड्स भी। एंड आई होप
टू सी की इसका यूज क्या रहेगा भाई, ये भी ये टीडीएस है, ये तो एक कंपनी के लेवल पे होगा ना, अगर मैं कोई कंपनी बना रहा हूँ, ताकि ये चीज क्लियर हो जाए आपको बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेफ अंडर अंडरस्कोर यूनिट बनाते हैं, इसको सेल्फ देते हैं, इसको एम्प्लॉय का आईडी देते हैं और इसको सैलरी दे देते हैं। ठीक है, अब पे अटेंशन एवरीवन, सेल्फ डॉट एम्प्लॉय आईडी, जो भी मेरा एम्प्लॉय आईडी दिया है वो दे देता हूं मैं आपने। ठीक है, सेल्फ डॉट सैलरी इज इक्वल टू सेल्फ डॉट अर्निंग सैलरी। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब डेफ एक हो गया मेरा ऑथेंटिकेट। ठीक है, इसको बना रहा हूं मैं प्राइवेट फंक्शन ओनली। प्रिंट इसको लेट से फॉर द टाइमिंग इसको हमेशा ट्रू बोल देते हैं, मतलब हम बोल देते हैं ट्रू, आप इसमें कल को लॉजिक ऐड कर सकते हो। डेफ सैलरी, इसको ये कॉल कर सकते हैं कि बंदा देख सकता है कि सैलरी इन हैंड कितनी आएगी मेरी। ठीक है, सैलरी इन हैंड कितनी आएगी, इसको सेल्फ चाहिए। ठीक है, पहले ये ऑथेंटिकेट करेगा तो सेल्फ डॉट अंडर अंडरस्कोर ऑथ कर सकता है ये। ठीक है, फिर रिटर्न क्या कर सकता है, सेल्फ डॉट अंडर अंडरस्कोर माइनस जितना भी कंपनी टीडीएस काटती है, जितना भी कंपनी कुछ काटती है, तो कंपनी डॉट अंडर अंडरस्कोर टीडीएस। तो या तो मैं इसको एक वेरिएबल बना सकता हूं, ऐसे देखो टीडीएस इज इक्वल टू से 10, तो मैं इसको ऐसे ही एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है, या फिर अगर मैं इसको एक मेथड भी बनाता हूं, इवन इफ आई मेक इट अ मेथड, ठीक है, डेफ अंडर अंडरस्कोर टीडीएस। ठीक है, तो बस की 10 काटते हैं। ठीक है, रिटर्न सेल्फ डॉट सैलरी इनटू कंपनी डॉट अंडरस्कोर टीडीएस। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी क्लास बन गई। एम्प्लॉय 1 बनाते हैं, मैं ना तो मैं ऑथेंटिकेट पा रहा हूं, ठीक है ना, तो मैं कंपनी के अंदर कोई देख नहीं पा रहा जो आ रहा है। ठीक है, सैलरी इसको मैं कॉल ही नहीं कर पाऊंगा, ये प्राइवेट पब्लिक में से दिक्कत है। ये कह रहे हैं कि यार तुम सेल्फ थोड़ी बेच सकते हो यहाँ से, तो ये तो प्रॉब्लम है ना। इसको भी आइडली हमें कोशिश करके हमें ये करना चाहिए कि हाँ एवरीथिंग शुड बी प्राइवेट, एंड एक मेथड के हम सारी चीजें दे देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सैलरी इन हैंड कैलकुलेट कर सकता हूँ, एंड इट इज अच्छा मुझे डिवाइड बाय 100 करना था इसको, एंड दिस इज 9000। मेरा 10% टीडीएस कट गया। नाउ आई डोंट नीड टू नो कि ये टीडीएस कितना है, ये कंपनी लेवल पे है। ठीक है, तो इसको मैंने एक स्टैटिक मेथड बना दिया। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर विद दिस यूज केस ऑफ स्टैटिक मेथड एंड स्टैटिक प्रॉपर्टी? आई नो थोड़ा सा फास्ट था, बट कंसेप्ट आपको पहले समझा दिया मैंने अभी एक एप्लीकेशन समझाई है यहाँ पे, जो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। कल को जब आप कोड लिखोगे ना, तो यही चीजें होती हैं जो एक आई वुड से बेटर प्रोग्रामर को एक नॉर्मल प्रोग्रामर से डिफरेंशिएट करती है। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन, यस और नो? एंड ये चीज आई थिंक जब आप बहुत ज्यादा अच्छे से अप्रिशिएट कर पाते हो, जब आपने लिखा, लाइक मैंने लिखा है ये कोड सारा, मैंने गोल्डमैन में, माइंटिकल इन जगहों मैंने ये चीजें ये लिखी हैं एक्चुअली में। आई हैव रिटन दीस थिंग्स एंड आई हैव सीन कि यार एग्जैक्टली कैसे होता है। सो बताओ एवरीवन, आई होप दिस इज क्लियर, यस और नो? कंसेप्ट सारा वही है, ठीक है? क्लियर? ठीक है, चलो वी हैव ओके 10 हो गया। शुड आई एक्सटेंड द क्लास? गुड टू एक्सटेंड 10-15 मिनट्स एक्सटेंड कर लें या क्या करें? शुड वी मीट नेक्स्ट वीक? एक्सटेंड या नेक्स्ट वीक? क्योंकि अब मैं आपसे ना एक बहुत अच्छा प्रोग्राम कराऊंगा। अब मैं आपसे एक फ्रैक्शन क्लास लिखवाऊंगा। आई एम गोना राइट अ फ्रैक्शन क्लास विद यू। सो जैसे 3/4 ऐसा कुछ होता नहीं पाइथन में। अगर आप 3/4 करोगे ना, तो आपको 0.75 दे देगा। सो लेट्स से 3/4 प्लस 1/2 करता हूं मैं, तो ये 1.25 आ रहा है। अगर मुझे क्या चाहिए था, अगर इफ यू हैव स्टडीड दिस फ्रैक्शन इन स्कूल, ठीक है, सो क्या होता है देखो एवरीवन, 3/4 प्लस 1/2, ये समथिंग हो जाएगा आपका 5/4। तो ये चाहिए मुझे। टेल मी एवरीवन, if you are enjoying I can very well extend the class, or else we can do it on Monday, but I think इसके साथ बस आपके सारे कंसेप्ट ही हो जाएंगे। एक क्लास और लगेगी आज का, थोड़ा सा ये स्टैटिक वाला अच्छे से समझाना था मुझे, क्योंकि अगेन यू विल सी कि यार ये सारी चीजें ना बहुत आई होप कि अब अच्छे से समझ आ गई हो। लाइक आई होप नाउ इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, चलो फिर एक बार जल्दी से बनाते हैं क्लास। ठीक है, क्योंकि उसके बाद बस आपके दो ही कंसेप्ट रह जाएंगे मेजरली, इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्शन। पॉलीमॉर्फिज्म इससे क्लियर हो जाता है। ठीक है, बट एक चीज बस, अच्छा एक चीज बता दो यार, आउट ऑफ 10 ही बता दो कि कितना सही से समझ आ रहे हो, मतलब
बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। ये सारा कंटेंट जैसे मैंने सोच रखा है आपको समझाने में, ठीक है, कितना अच्छे से समझ आ रहा है आउट ऑफ 10। मतलब आई होप कि आई एम एबल टू इम्पार्ट ऑल द नॉलेज जो मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कमाई है, कि यार ये चीजें एक्चुअली में यूज कहाँ होती है। मैं आपको ये नहीं बता रहा सिर्फ कि ये स्टैटिक होता है, ये पॉलीमॉर्फिज्म है, ये है, ये बता दो बस एक बार कि अच्छा ये कितना सही क्लियर हो रहा है आउट ऑफ 10। अगेन देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दे आर डिफिकल्ट थिंग्स, बट हाउ मच इज क्लियर ये एक बार समझा दो कि यार हाँ यार थोड़ा सा मैं अब समझ आ रहा है, वो डरावना नहीं लग रहा। ये स्टोरी के थ्रू आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या दिक्कतें आती हैं, उसके लिए हमने चीजें बना रखी है। ठीक है, आई कैन लिव विद इट, to take care I will make sure that we'll do that. Internet finish, चलो ठीक है, cool everyone. So let me do one thing, let us have a class, I will just update, ठीक है, let us have a class on Monday, ठीक है, Monday 8 to 10 PM कर लेंगे हम क्लास में भी, एंड देन आई विल एक्सप्लेन, एंड देन आई थिंक उसमें कंप्लीट हो जाएगा उप्स आपका, ठीक है। और अगर टॉपिक बचा भी तो यार ढंग से करेंगे, बस देखो प्लान वो ये कि मैं 1 घंटे में उप्स खत्म कर सकता हूँ। 1 घंटे में ना समझ नहीं आती सब चीजें, फिर आप ना ऐसे हो गए कि यार ये हुआ क्या, उप्स फिर कभी समझ ही नहीं आएगा, फिर कभी यूज नहीं कर पाओगे। और आप देख सकते हो हर जगह ओप्स यूज हो रहा है, पाइथन ही ओप्स यूज कर रहे हैं सारी जगह, पाइथन में सारी चीजें ऑब्जेक्ट है, हर कंपनी का कोड ओप्स से लिखा होता है। आई होप आई बी एबल टू कनेक्ट दैट एज वेल। अभी कंपनी में ये जो अमेजोन वगैरह वैट टैक्स ये सब लगाते हैं, ये उनके अंदर के वेरिएबल है, इन्होंने स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है। चलो थैंक्स लॉट एवरीवन, जस्ट अ फ्यू रिक्वेस्ट, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज डू शेयर दिस विद एवरीवन। इफ यू कैन ऑल्सो पुट अप अ पोस्ट ऑन लिंक्डइन कि यार इफ यू लाइक्ड एंजॉयड दिस oops सेशन, इफ यू एक्चुअली अंडरस्टूड समथिंग फ्रॉम मी, दैट वुड ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल for me as well as for my channel. Again, I am running this Hello Python playlist as all of you are aware. Extremely sorry, मैं एक चीज ट्राई आउट कर रहा था आज, तो उस चक्कर में ज्यादा टाइम लग गया, ठीक है। मैं स्टीम यार्ड के थ्रू कोशिश कर रहा था स्ट्रीम करने की, उसमें कुछ एरर आ गया, ठीक है। सो इफ यू विल सी हियर लॉट्स ऑफ वीडियोस आर गेटिंग एडेड, ठीक है, पाइथन डे 12, तो ये एक प्लेलिस्ट चल रही है पूरी, जहां पे वी आर गोना रीच टू आई वुड से और दिस थिंग oops यहाँ पे भी आएगा, ठीक है, लेकिन या प्रीटी श्योर कि अब ये समझ आ गया होगा, ठीक है। हाँ नन, दैट विल ऑलवेज बी अ प्रॉब्लम। स्टूडेंट सबसे ज्यादा पहले चेक करते हैं, पहली क्लास का करते हैं, फिर आगे आगे कम होते रहते हैं, बिकॉज मोर पीपल आर जस्ट एक्साइटेड बाय लर्निंग, नॉट एक्चुअली लर्न। और आई एम प्रीटी श्योर कि अगर एक बार 4-5 घंटे मेरे साथ एक बार ऊप्स में संभाल लोगे ना, सो यू ऑल विल बी एट अ वेरी गुड पोजीशन, आपको ऊप्स में कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। आई कैन बी वेरी श्योर ऑफ दैट, कि मेरे को इतना पता है कि मैंने ऊप्स इतना लिखा है, मैंने कम से कम एक्चुअली में हजारों क्लासेस बनाई हैं ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम श्योर ऑफ दिस। चलो देन, थैंक्स लॉट एवरीवन, आई थिंक वी कैन एंड द स्ट्रीम। अगर किसी का कोई डाउट है तो बताओ, इफ एनीवन हैज एनी डाउट, अगेन लाइक दिस स्ट्रीम, सो जैसे मैंने यहाँ पे किया था ना, आई एम गोना ऐड दिस हियर, आई एम गोना ऐड एवरीथिंग, मतलब यहाँ पे नीचे आप देखोगे कि मैंने कमेंट किया था रिसोर्सेज का, तो आई एम गोना डू द सेम फॉर यू, ठीक है। एंड अभी आई हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग एमएल कंटेंट एज वेल, तो वो भी काफी उसमें रहेगा, तो बढ़िया, बस आपके मजे आ जाएंगे। एमएल वगैरह भी ढंग से पढ़ना, और ज्यादा मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम्स है वो बहुत सही तरीके से, ठीक है, आई एम गोना कवर। एंड आगे मैंने एक प्लान और किया है बहुत सही, जो आई थिंक काफी लोगों को हेल्प करेगा, डीएसए इन पाइथन। तो जो डीएसए की सारी दिक्कत है ना दुनिया की, वो पाइथन में सॉल्व करेंगे हम। सो डीएसए इन पाइथन इज आल्सो समथिंग व्हिच इज ऑन द बुक्स, ठीक है। उसमें भी डीएसए ऐसे पढ़ाऊंगा कि यू ऑल विल बी लाइक यार हाँ डीएसए मुश्किल तो नहीं है, पता नहीं क्यों मुश्किल लग रहा था, ठीक है। कूल एवरीवन, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू द सेम, जस्ट शेयर दिस विद एवरीवन। If you like this, please make sure that if you can write the post on LinkedIn or anywhere, if you can basically do that, that will be helpful, ठीक है। Gunjan, resources where you are gonna find is, see, resources you can find, you go on my channel, ठीक है, then you go on this live, ठीक है। यहाँ पे अब ये oops concept 2 will come as a video, ठीक है, ये उस दिन की वीडियो है। So in this video I'm gonna just comment the report, ठीक है, ये हो जाएगा। मैथ्स का ठीक है आनंद, आई विल मेक श्योर, वैसे है वो लाइन में, मतलब आई वांट टू बेसिकली मेक कंटेंट ऑन एवरीथिंग, आपका पाइथन, मैथ्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई, डीएसए, तो जितनी चीजें मुझे आती है सबका सोच रहा हूँ मैं बना दूं। एंड आई नो अ लॉट ऑफ टेक, मतलब आई हैव बीन डूइंग टेक ओनली फॉर द लास्ट 6-7-8 years आई थिंक। कोडिंग मैं 2012 से कर रहा हूँ ऑब्वियसली, सो आई विल डू दैट, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट या विल मेक श्योर दैट आई डू दैट। बस थोड़ा सा वही है कि चैनल अच्छे से, मतलब इफ पीपल आर अप्रिशिएटिंग दैट, इफ इट गेट्स व्यूज तो और अच्छा लगता है, मतलब यू फील अ लॉट आई वुड से मोटिवेटेड, तो वही अप्रोच है। बट या आई विल मेक श्योर दैट आई क्रिएट क्वालिटी कंटेंट, मतलब अभी भी अगर आप वीडियोस देखोगे ना, यू विल अप्रिशिएट वन थिंग कि यार
ओवरऑल द क्वालिटी आई एम कॉम्प्रोमाइज एनीवेयर. सो यहाँ पे आप देखोगे कि दिस इज अवेलेबल ऑल द वे टिल 4K. ठीक है, एंड full proper clarity and everything is there so that you don't face any problem. Okay everyone. हाँ आनंद, आई विल मेक श्योर कि पीपल बिकम डेटा साइंस. क्या एआई इंजीनियर भी बन जाएंगे, टेंशन ना लो. एआई इंजीनियर तक का रूल रखते हैं अब तो. ठीक है, सो मेरा प्लान यही है कि 3-4 महीने में टचवुड आई होप आई एम एबल टू बेसिकली मेक श्योर ऑफ एवरीथिंग. सो प्लीज जस्ट सपोर्ट मी, प्लीज शेयर सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन सी दिस. आई नो स्टिल देयर इज अ वेरी मच डर्थ ऑफ ऑल दीस थिंग्स ना, तो इसलिए आई एम ट्राइंग टू डू दैट. और अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो कभी दिक्कत ही नहीं आएगी भाई जिंदगी में. ठीक है, cool everyone. I hope this is helpful. If anyone has any doubt, let me know. Else we will meet on Monday. ठीक है. And if anyone has any doubt, you can also mail me. So my mail is mail to mayankagarwal@gmail.com. So this is specific mail, मतलब for this particular only. So mail to mayankagarwal specific @gmail.com. ठीक है. चलो, thanks a lot everyone. Manoj, any reference for service not development, sir? I didn't get this, Manoj.